আমি কেনেকৈ গম পাম আমাৰ কেঞ্চাৰ হৈ আছে বা ষ্টেজ 4 পাইছেগৈ কি হ'লে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম যে আমাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে বা হৈ আছে স্যাৰ কোনোবাই কয় যে কেঞ্চাৰ য'ত হয় তাত পেইন নহয় বুলি কয় पेनलेस जहाँ होता है वहीं से कैंसर शुरू होता है ऐसे कोई कोई बताता है सर ये कितना सच है सर सर कैंसारे এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো বেমাৰে গোটেই পৃথিৱী ধ্বংস কৰি দিব মানুহ মাৰি শেষ কৰি দিব ইয়াৰ কোনো চিকিৎসা নোলাব নেকি কেতিয়াও টেবলেটস এনিথিং इतना भयानक चीज़ नहीं है कैंसर जो हम 20 साल पहले सोचता था ऐसा नहीं है। सर लेडीज को ज़्यादा कैंसर होता है या जेंट्स को होता है कैंसर जब से हम जिंदा है और जब तक हम मर जाएगा तब तक कहीं भी हो सकता है बट रीजन्स अलग अलग हो सकता है। गुटखा कितना डेंजर है मैं अपने ज़िंदगी से प्यार कर रहा तो मैं गुटखा को नहीं कहूँगा। যিসকলে গৰুহাল বিক্ৰী কৰি পেলাই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে যিসকলে মাটিডৰা বিক্ৰী কৰি পেলাই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলে সেই পইচাকেইটা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে বাহিৰলৈ যোৱাৰ আগতে তেজপুৰৰ দৰিকাৰ হস্পিটেলৰ 3rd ফ্ল'ৰত থকা শংকৰা কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত সোমাই এবাৰ খবৰ এটা কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ আজিলৈকে হয়তো ইমান গভীৰভাৱে আৰু ইমান সূক্ষ্মভাৱে কেঞ্চাৰৰ ওপৰত কোনো কথা পতা নাই বিশেষকৈ মইতো বাৰ্তালাপত পতাই নাই আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে এজন বিশেষ চিকিৎসকৰ সৈতে আমি যথেষ্ট কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কেঞ্চাৰ কিয় ইমান বৃদ্ধি পাইছে আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত কিয় কেঞ্চাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ ভেংকটা প্ৰদীপ বাবু কোয়েলা তেখেতৰ নাম আৰু তেখেতৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ তেখেতৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু তেখেতৰ মই চিকিৎসা শাস্ত্ৰত বা চিকিৎসা বিজ্ঞানত তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মই ক'ব লাগিব তেখেত MBBS AMC গোল্ড মেডেলিষ্ট হয় তেখেত MD হয় তাৰপৰা ডক্টৰ ইন মেডিকেল অনকলজিষ্ট ফৰ্মাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মেডিকেল অনকলজিষ্ট ACCF টাটা ট্ৰাষ্ট ইউৰোপিয়ান চাৰ্টিফিকেশ্যন ইন মেডিকেল অনকলজি ফেলো ইউৰোপিয়ান ছ'চাইটি PMC কানাডা FUICC ইটালী ফৰ্মাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ মেডিকেল অনকলজি Tata Memorial Visakhapatnam, ex-consultant Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, associate editor Indian Journal of Medical and Pediatric Oncologist. যথেষ্ট দীঘলীয়া তেখেতৰ এই অভিজ্ঞতা স্যাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই আপোনাক নমস্কাৰ চক্ৰপাণীজি ভালে আছে আপুনি মই ভালে আছোঁ আৰু তেখেত বৰ্তমান আছে তেজপুৰত আৰু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেতক লগ কৰিবৰ বাবে তেজপুৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেজপুৰত তেখেতে এই সেৱা আগবঢ়াই আছে স্যাৰ প্ৰথমে মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু আজি মই ভাবিছোঁ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত পুৰা ডেফটত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আমি নজনা বহু কথা আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটো সজাগতাৰ বাবে আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ স্যাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নাজানো মই আপোনাক অসমীয়াত সুধিম আপুনি পাৰিলে অসমীয়াত ক'ব হিন্দীত ক'ব ইংলিছো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাট আমি বুজাব লাগে আমাৰ পেচেণ্টক মই এতিয়া অসমীয়াত ক'ব পাৰে এতিয়া लेकिन पूरा फ्लुएंसी ना है একো নাই तो স্যাৰ मैं हिंदी में थोड़ा बोलूँगा ताकि वो जो मैसेज है सही से जाए জি স্যাৰ আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা স্যাৰ ইমান বছৰৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাই বহুত পেচেণ্টক আপুনি লগ পাইছে চ' ক'ৰ পৰা জাৰ্ণি আৰম্ভ হৈছিল আৰু আপুনি ক'ত আছিল কেনেকৈ আহিলে আৰু অসম কেনেকৈ পালেহি স্যাৰ जी मैं MBBS आंध्रा मेडिकल कॉलेज से किया था तो आंध्रा मेडिकल कॉलेज जब भी मैं AMC लिखता हूँ बहुत लोग सोचता है कि असम मेडिकल कॉलेज बट आंध्रा मेडिकल कॉलेज इज़ इन विशाखापट्टनम वो भी असम मेडिकल कॉलेज जैसा वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है उसके बाद MD जनरल मेडिसिन मैं किया था बिकॉज जनरल मेडिसिन में हम एक डिटेक्टिव जैसा काम करना पड़ता है मतलब आप डायग्नोसिस के लिए ढूंढना पड़ता है जी इसलिए आल्दो सर्जन एक वैरियर जैसा स्कैल्पेल्स ये सब होते हैं तो वी आर लाइक ए डिटेक्टिव्स वी आर लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरोस ओके तो जब भी वो पढ़ रहा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक्स चैप्टर तो उसमें हमारा जेनेटिक्स हमको कैसे डिटरमाइन करता है एक चैप्टर होता है जो यूजुअली नेग्लेक्ट किया जाता है मतलब उसके ऊपर उस समय में इतना ज्ञान नहीं होता था बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स
क्या डायग्नोज हुआ, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, पेशेंट को कैसे ठीक करना है, यही चीज़ चलता रहता है। जी सर। बट अब लास्ट 20 ईयर्स में देखा तो जेनेटिक्स में काफ़ी रिसर्च हुआ था। इसमें ये भी पता चलता है कि कैसे हमारा अंदर छिपा हुआ सेल के अंदर ये जीन्स हमारा जीवन में सब कुछ डिसाइड करता है। जी हमारा हाइट, वेट, कलर, हमारा बिहेवियर, हमारा सोच, हमारा डिसीजेस जी सर। एंड हमारा डेथ और डेथ लाइफ। तक, यस, डेथ तक। डेथ तक। ओके। तो फॉर एग्जांपल डेथ का संभाषण आया था, मैं बताऊंगा। रिसेंटली हम एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था, उसमें एक मॉलिकुलर साइंटिस्ट आया था हु वाज लीडिंग द जेनेटिक्स ऑफ कोविड-19। तो उन्होंने एक रिसर्च किया था फ्रॉम द ही वाज अ फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट इन इंडियन जीनोमिक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, दिल्ली में। जी सर। तो वो लोग जब ये रिसर्च किया था कि क्यों यंग यंग लोग जिम्स में एक्सरसाइज करते करते हुए मर रहे हैं, जब बहुत फिटनेस है। उनको देख के आपको नहीं लगता है कि उनको कोई बीमारी भी होगा, बट सडनली दे आर डाइंग जस्ट लाइक दैट, हार्ट अटैक या होके, हार्ट फेलियर होके। तो वो लोग ये देखा कि हमारा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होता है, जो हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं जब भी उसमें स्ट्रेस होता है। मतलब एक जेनेटिक फैक्टर है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। ओके। तो एक जेनेटिक डिफेक्ट ऑलरेडी जिसमें है, उसको एक एनवायरमेंटल फैक्टर मिलने से, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब बाहर का चीज़, वो स्ट्रेस हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। ओके। तो कोई कॉम्बिनेशन में होता है, तब वो डिसीज मैनिफेस्ट होता है। ओके। तो तो हर एक बीमारी का अभी जेनेटिक बेसिस निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कैंसर से, कैंसर का भी। कैंसर का भी। सो डायबिटीज से लेके एक नॉर्मल हमको जितना बार कोल्ड होता है, वो भी हमारा जेनेटिक सिस्टम से डिपेंड होता है कि हमारा इम्यूनिटी उस वायरस से कैसे लड़ सकता है, कितना रिएक्ट होगा जी सर। टू द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीज विच इज कॉल्ड कैंसर। ओके सर। तो उस तरह का जेनेटिक चैप्टर पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था कि समथिंग आई वांटेड टू डू रिसर्च इन जेनेटिक्स। ऐसा मतलब जैसे आप बच्चों को पूछते हैं कि आगे क्या करेगा, वो बोलेगा पायलट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो एमडी में ये लगता था कि हम जेनेटिक्स में रिसर्च करेंगे ऐसा। बट अल्टीमेटली सबसे जेनेटिक्स के करीब ब्रांच है ऑन्कोलॉजी, दैट टू मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी करने के लिए मुझे दोबारा एंट्रेंस लिखना पड़ता है। जैसे मैं एमबीबीएस के बाद एंट्रेंस लिखता हूँ, एमडी के बाद दोबारा एंट्रेंस लिखना पड़ता है, नेशनल लेवल एंट्रेंस, एंड देन आई गेट सिलेक्टेड इनटू मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो तब मुझे स्टेट में हमारा आंध्र प्रदेश में भी कुछ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डीएम का सीट का अपॉर्चुनिटी भी आया था। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड डीआरएनबी प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये प्रोग्राम चलता है। ओके सर। सॉरी, होम अफेयर्स नहीं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। देन उसमें ये डॉक्टरेट ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन चलता है। सो देयर इज 2 हॉस्पिटल्स व्हिच आर रियली गुड फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी नॉर्थ इंडिया में देखा गया तो, राजीव गांधी एंड आर आर्मी का जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन राजीव गांधी। सो मैं कभी भी बड़ा सिटी में नहीं गया था, बट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उसमें एंटर हुआ था। कितने साल हो गया सर आपका ये जर्नी, मेडिकल जर्नी? अभी मैं बोलूँगा कि ऑन्कोलॉजी में मुझे लगभग 11 साल। ओनली ऑन्कोलॉजी में? ओनली ऑन्कोलॉजी में। तो मेरा मेडिसिन जर्नी पूरा किया तो 21 साल हुआ। 21 साল হৈ গ'ল। তো তেনেকুৱা এগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে আজি কথা পতাৰ সৌভাগ্য হৈছে, আৰু বিশেষকৈ আমি কেঞ্চাৰৰ ওপৰত সকলোবিলাক কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে গমেই পায়, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমত কেঞ্চাৰৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। কিয় হৈছে, কি কাৰণে হৈছে, আমি কেনেকৈনো আগতীয়াকৈ গম পাম? কিছুমানেতো ষ্টেজ 4 হোৱালৈকে গমেই নাপায় যে কেঞ্চাৰ হৈ আছে। ইয়াৰ সুবিধা কি আছে, চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিব লাগে, এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চালে বুজি পাব। सर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत कम है इंडिया में सर, बहुत ही कम है। असम में तो बहुत ही कम है सर। जी, लगभग आप देखा तो मेरा सीनियर्स कोलीग सबको मिलके गुवाहाटी में 5-6 लोग हैं। ओनली जो 5 to 6 पीपल है जो एक्टिवली प्रैक्टिस करता है। यस। और डिब्रूगढ़ में 1-2 लोग हैं, और बीच में कोई भी नहीं है। और इतना पेशेंट है। जी, চাওক, আপোনালোকে ভাবক, হাজাৰ হাজাৰ ৰোগী আছে, কিন্তু মেডিকেল অনকলজিষ্ট, কেঞ্চাৰৰ সৈতে চিকিৎসা কৰিব পৰা, জেনেটিকৰ সৈতে চিকিৎসা কৰিব পৰা মেডিকেল অনকলজিষ্ট চিকিৎসক মাত্ৰ 5জন আছে। ডাঙৰ কথা। ছাৰ, মই কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিকেইটা একদম স্পেচিফিক কুৱেশ্যন, আৰু আমাক বুজাই দিব লাগিব ছাৰ। প্ৰথম প্ৰশ্ন ছাৰ, আমি কেনেকৈ গম পাম
আমাৰ কেঞ্চাৰ হৈ আছে বা ষ্টেজ 4 পাইছেগৈ কি হ'লে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম যে আমাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে বা হৈ আছে স্যাৰ कैंसर एक दिन में नहीं होता है कभी। ओके कैंसर एक हमारा ज़िंदगी जैसे, सपोज हम किस तरफ से वो देखेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज कोई किसी एक बच्चे जन्म हुआ है, हम बोलेंगे कि अभी उससे डेथ का क्लॉक स्टार्ट हो गया है, कितना बुरा लगेगा। वही तो सच है ना सच है लेकिन, है ना। सो इन द सेम वे कैंसर एक लाइफस्टाइल प्रोसेस डिसीज़ है, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशन। जैसे जापान का बॉम्बिंग हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, उतना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब एक आदमी को एक्सपोज होता है, उनको कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में इनका कैंसर हो सकता है। वो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस है। इन ऑल अदर केसेस यूजुअली वो एक क्रोनिक प्रोसेस है। आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। क्रोनिक प्रोसेस मतलब वो कई सालों में डेवलप होता है। ओके सर फॉर एग्जांपल, मैं अल्कोहल कोई पी रहे हैं, आज वो एक बॉटल पीना शुरू कर दिया विस्की, तो उसको इमीडिएटली कैंसर होगा क्या 6 महीने में? नहीं होगा नहीं होगा। तो हमारा बॉडी को कोई भी इंजरी से अपने आप को रिकवर करने के लिए शक्ति होता है, हर एक ऑर्गन को। जी जब वो इंजरी इतना ज़्यादा होता है कि हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे, ओके तब कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स, उस हर एक ऑर्गन में जो सेल्स से बनता है, सेल्स मतलब जैसे घर है ईंट से बनता है, जैसे एक एक ऑर्गन सेल्स से बनता है। जी सर तो कोई भी ऐसा डैमेज हो रहा है जिससे वो वापस नहीं आ पा रहे, रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो यूजुअल प्रोसेस होता है कि वो सेल का डेथ हो जाता है। ओके, जैसे हार्ट अटैक हुआ तो लोग क्यों उनका सांस फूल जाता है, बिकॉज हार्ट का वो सेल्स डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है जी वो रेगुलर प्रोसेस है। बट कैंसर थोड़ा अलग है। कैंसर उस सेल से होता है जो आइडियली डेथ हो जाना चाहिए, बट वो डेथ नहीं हो रहे, वो जिंदा हो रहे उतना डैमेज होने के बाद भी, तब वो कैंसर बन रहे, जस्ट लाइक टेररिस्ट। सो आप सोचिए कि हम नॉर्मली, एक आदमी क्या सोचता है कि हम सबसे अच्छा हो, एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में हम अच्छे से जिंदगी जिए, बट किसी का दिमाग इतना खराब हो गया, बट वो हमारे साथ ही बीच में जिंदा रह रहे हैं, तो उससे कभी भी डेंजर है। राइट तो ये डैमेज्ड सेल्स जो होता है, नॉर्मली बॉडी एक का खुद का मैकेनिज्म है, उसको खुद को सुसाइड करवा लेता है। इसका एपोप्टोसिस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जी 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 मर के भी जिंदा है वो सेल हाँ, मतलब उसका डैमेज हुआ, हाँ मतलब बिकॉज फॉर एग्जांपल अल्कोहल लिया आपने जी अल्कोहल लेने से लिवर सेल इतना डैमेज हो गया, उसका डीएनए, इसके सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो गया, तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम के हिसाब से या हमारा बॉडी का मैकेनिज्म के हिसाब से वो डेथ हो जाना चाहिए व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट डीएनए डैमेज। जी बट उसका डीएनए डैमेज हुआ, बट वो डेथ भी नहीं हो पा रहे। नाउ उस सेल जिंदा है और कुछ कुछ चीज़ें उसके ऊपर और भी डीएनए डैमेज होता रहेगा, जिससे उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज आ जाएगा कि वो सेल का नियम के बाहर आ जाएगा बॉडी का, तो वो खुद अपना इंडिविजुअल रूल्स को फॉलो करता रहेगा, अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा। वही कैंसर है। सेम विद द स्मोकिंग, सेम विद द अल्कोहल। जो हम कैनी तंबाकू च्यू करते हैं, तब भी मुंह के अंदर जो सेल्स होता है, तो आप इसका सिंपल रीजन आप सोच सकते हैं कि कहीं भी कोई भी इरिटेशन होता है सेल्स को, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में वो कैंसर बनता है। जैसे स्मोकिंग किया तो लंग कैंसर 10 साल में हो सकता है। इफ आई नॉर्मली सपोज 10 सिगरेट 10 साल लेने से मुझे कैंसर होने का रिस्क है, मैं 20 सिगरेट पिया तो वो 5 साल में हो सकता है। बट आप हमेशा ये क्वेश्चन इमीडिएटली आ जाता है कि मेरा फ्रेंड तो इससे ज़्यादा पी रहा है, उसको क्यों नहीं हुआ। तो वही रीज़न है कि हम बहुत सिंपलिस्टिकली देखते हैं चीज़ों को, ऐसे सिंपलिस्टिकली नहीं होता है। एक है एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा जेनेटिक फैक्टर, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ही कैंसर होता है। इनफैक्ट कोई भी डिसीज होता है, कोई भी डिसीज का ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल। पर्सनल मतलब मेरा स्मोकिंग हैबिट्स, मेरा अल्कोहल हैबिट्स, मेरा कैनी, मेरा स्लीपिंग हैबिट्स, मेरा स्ट्रेस लेवल्स, ये पर्सनल हो गया। जी सर। जेनेटिक फैक्टर्स वो है जो मेरे को मिला है पेरेंट्स से, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, पर्सनल को चेंज कर सकता हूँ। तीसरा एनवायरमेंटल, मतलब क्या पानी मैं पी रहा हूँ,
क्या हवा मैं ले रहा हूँ, किस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, वो चीज़, किस तरह का धूप में मैं खड़ा हूँ, जी। ऐसा चीज़ जेनेटिक को हम लोग सेंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों हम सेंस कर सकते हैं और उससे हम कैंसर से बच सकते हैं सर। जी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन में जब होता है, उसमें 2 तो आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं दिल्ली में जब रहा था, वहाँ तो पोल्यूशन पोल्यूशन 1000 पीपीएम में भी होता था। अभी तेजपुर में तो इतना पोल्यूशन है ही नहीं, तो मैं एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। पर्सनल पहले मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। अभी मैं 10,000 स्टेप्स पर डे डेली लेने का कोशिश करता हूँ। तो मैं पर्सनल चेंज कर सकता हूँ। मैं अल्कोहल नहीं लूँगा, स्मोकिंग नहीं लूँगा, तो पर्सनल मैं चेंज कर सकता हूँ। जेनेटिक मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं भाई जान सकता हूँ उसके बारे में यस कि क्या जेनेटिक रिस्क है मेरा। जी 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 तो फैमिली में किसी को कैंसर है, हम हमेशा बोलते हैं पेशेंट को कि आप अपना जेनेटिक रिस्क बाकी लोगों में जानना चाहिए। पर्टिकुलरली कुछ कैंसर्स ऐसा है जिसमें बाकी मेंबर्स को भी रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट और वो पता करने के लिए कुछ टेस्ट भी है, और वो इंडिया में भी है, तेजपुर में भी है। ओके दिसपुर में भी मतलब इन द सेंस वो टेस्ट यहाँ नहीं होता है, यहाँ से बेंगलुरु में, मुंबई में सैंपल के लिए जाएगा, तो वैसा है। কোনোবাই যদি ভাবিছে তেওঁৰ ভৱিষ্যতে কেঞ্চাৰ হ'ব নেকি, যেনে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষত আছিল নেকি, সেই টেষ্টটো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ বাবে তেজপুৰতো হ'ব পাৰে, গুৱাহাটীতো হ'ব পাৰে, भारत और बेलेग बेलेग जगह तो हो पाए। सर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग को स्टेज 4 हो गया, तो कुछ तो रीज़न होगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे कुछ निकल के आ रहा है। क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर से स्टार्ट होके एनी ऑर्गन में? ओके, कैसे कैसे हम ये लोग भी detect बहुत कर सकते इंपॉर्टेंट हैं? क्वेश्चन है, एंड बहुत सिंपल लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हाँ है, सर। बट फिर भी उसका मैं सिंपलीफाई करने का कोशिश ठीक करता है हूँ। सर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टार्ट विथ लंग कैंसर अगेन। तो लंग कैंसर में क्या होता है, जब भी सिम्टम्स होता है, खांसी होता है, स्पुटम होता है, स्पुटम में ब्लड हो सकता है, ओके और वजन लॉस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब वजन कम हो सकता है। जी जी तो ये सब सिम्टम्स आपको सुना ही लग रहा है कहीं, हाँ कभी सेम टू सेम टीबी में भी होता है एग्जैक्टली टीबी में भी है होता ना? है। हाँ सपोज कोई सिगरेट पी रहे हैं, उनका सीओपीडी करके हो सकता है, सीओपीडी में भी ये सब सिम्टम्स होता है। ओके तो पर्टिकुलरली इंटरनल ऑर्गन्स में जब कैंसर होगा, बहुत आसान नहीं है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना। इन द सेम वे, फॉर एग्जांपल आंतों का कैंसर आप ले लीजिए। आंतों का वहाँ जब कैंसर होता है, उसका मेन 2 सिम्टम्स हो सकता है, इधर पायखाना रुक रहे, कंप्लीटली बंद हो रहे हैं, या लूज मोशंस हो रहे हैं, और ब्लड अपने आप कम हो रहे हैं, थकावन हो रहे हैं। जी जी बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है। हाँ 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 लेकिन कोई भी ये सिम्टम अपने आप में ठीक नहीं हो रहे, और कुछ भी जांच करने के बाद, एक आप जब भी ये सिम्टम्स होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कैंसर डॉक्टर के पास जाना है। पहले हमारा जो घर के बगल में, घर के आसपास, या जो रेगुलरली हम विजिट करते हैं फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, उनके पास जाना चाहिए। सपोज उनको सारा टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, वो टीबी भी नहीं है, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नॉर्मली डिटेक्ट होता है, और वो दिक्कत कम नहीं हो रहे, यस देन डेफिनेटली वी शुड आस्क फिजिशियन कि आपको कुछ और शक है क्या, या फिजिशियन हिमसेल्फ विल रिफर टू ऑन्कोलॉजिस्ट। यस 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 तो ये इंटरनल ऑर्गन्स का हो गया। बट दुख का बात है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जैसे मुंह, ब्रेस्ट, ये तो इजीली पता चल जाता है, बिकॉज मुंह में कोई भी घाव हो रहा है तो दूसरे वाला ही, सामने वाला ही बता देगा ना आपको, दिखा लो डॉक्टर को। हाँ, कि कुछ तो क्या हुआ है, ये क्यों कम नहीं हो रहे, और घाव बढ़ ही रहे। वैसे मुंह के अंदर भी हम खाना नहीं खा पाएंगे, तो इसोफेगस में हुआ तो खाना निगल नहीं पाएंगे। सेम वे ब्रेस्ट में लंप हो रहे हैं, 90% ऑफ लम्प्स कैंसर नहीं है, ओके बहुत कम लम्प्स होता है जो एक्चुअली कैंसर होता है। ओके बट वी नीड टू नो द रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने बोला था, एनवायरनमेंट, पर्सन, और जेनेटिक। जेनेटिक हाँ सपोज किसी का घर में ब्रेस्ट कैंसर है, और उनका बेटी को ये लंप हो रहा है और कम नहीं हो रहे हैं, तो दे शुड बी ऑन अलर्ट। ओके ओके उसमें नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। सपोज कोई भी ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री नहीं है, बट ब्रेस्ट में लंप हो रहे हैं,
जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं वो बढ़ रहा है, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद कम हो रहे हैं, तो वो कैंसर होने का चांस कम है। कम है। कम है। ओके। फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। जी सर। बट ये अपने आप को डिसाइड करना मुश्किल होता है, तो आपका पास का जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है उनसे संपर्क कर लीजिए। राइट सर। पर्टिकुलरली वो कम नहीं हो रहा है और साइज बढ़ रहा है, पेन हो रहे हैं, निप्पल जो होता है निप्पल इन्वर्ट हो रहे हैं, या स्किन के ऊपर रेडनेस हो रहे हैं, और एक्जिला बोलते हैं जो हाथ के नीचे का प्लेस है, यहाँ कोई भी घाट आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके सर। ओके। कोई बताता है सर कि मैं অসমীয়াতে সুধিছোঁ ছাৰ কোনোবাই কয় যে কেঞ্চাৰ য'ত হয় তাত পেইন নহয় বুলি কয় पेनलेस जहाँ होता है वहीं से कैंसर शुरू होता है ऐसे कोई बताता है सर ये कितना सच है सर कैंसर से एक और प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में बहुत ही जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हो जाता है। मतलब एक चीज़ जैसे मैं 100 तरह का कैंसर्स देखता हूँ, राइट? तो और मैं 6 साल 10 साल इसमें बिताया, मेरा परसेप्शन कैंसर का अलग होगा। एक फैमिली जो कैंसर से गुजरा है और एक कैंसर से जीता है, उनका परसेप्शन अलग होगा। जो आदमी दूर से बगल किसी का कैंसर है, बगल से वो डेली देख रहे हैं कि ये पेशेंट को के साथ क्या हो रहा है, वो भी एक परसेप्शन फॉर्म करेगा। जी जी। बट सबसे ज़्यादा बात कौन करेगा पता है? डॉक्टर या फैमिली नहीं है, वो जो दूसरा आदमी है ना जो देखता है, उनका खुद का ओपिनियन फ्री में देता है। ये बहुत डेंजरस वो होता दो है। चार लोग यस, वो 2-4 लोग होता है, बहुत डेंजरस होता है। dangerous होता बिकॉज वो फ्री एडवाइस देता है, बिकॉज दुख उनका नहीं है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, बट फ्री एडवाइस दे देता है कि ये करो। वो डेंजरस है। यस यस वो कैंसर से भी डेंजरस है सर यस। बिकॉज आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज दिस यंग लेडी फ्रॉम देखिया जॉली, 32 ईयर्स है, ओके। उनको ऐसा ही चेस्ट में कॉफ हो रहा था, पेन हो रहा था, कमी नहीं हो रहे, तो फिजिशियन देखा था, एक्सरे दिया था, वहाँ कुछ गांठ दिखा था, तो दे वेंट टू अपोलो चेन्नई। तो अपोलो चेन्नई में पेट सीटी किया था। देयर वाज अ डिसीज इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके लिवर में सब जगह फैला हुआ है। वो पिछले 6 महीने से चल रहे, दे वेंट देयर। ब्रेन में भी बीमारी था। वो लोग बोला था कि बायोप्सी करने के लिए, ताकि हमको पता चलेगा किस तरह का कैंसर है, देन वी कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट बायोप्सी कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। एंड आपको यूट्यूब में 100 तरह का ये चीज़ मिलता है कि बायोप्सी करने से ये होगा वो होगा करके। सपोज बायोप्सी में ऐसा होता है, तो अमेरिका में क्यों करेगा, यूरोप में क्यों करेगा? आप मानते हैं ना उनको, हमसे भी एडवांस्ड है, वहाँ का पेशेंट क्यों कराएगा बायोप्सी? तो गलत फहमी में जाना बहुत आसान है, सच जानना मुश्किल होता है। बिकॉज वो पेशेंट को कोई बोला था कि आपका बायोप्सी करने से और भी फैल जाएगा, और फैलने का जगह ही नहीं है बॉडी में। सपोज बायोप्सी करने से ही बीमारी फैलता है, तो ऑलरेडी उनको तो पूरा फैला हुआ है। जी जी। और शी केम बैक, मतलब अपोलो से बाहर वापस आके 6 महीना यही बैठा था। जब मैं वहाँ टाटा ट्रस्ट हॉस्पिटल में था तब आया था, एकदम स्ट्रेचर में, हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। सो पेन। वो बोल रहे कि सर कुछ तो करो, मैं पेन में हूँ, मैं उठ भी ना पा रहे, ये बोल रहा था। तब उनका बायोप्सी, हड्डी से बाहर आ रहा था बीमारी, वहाँ बायोप्सी करके एक स्पेशल टेस्ट कराया था जिसमें एक मॉलिक्यूलर म्यूटेशन आया था। तो उसके लिए उस स्थिति में कीमो हम नहीं दे पाते थे, तो वो एक स्पेशल जेनेटिक म्यूटेशन आया था जिसके लिए टैबलेट होता है, टारगेटेड थेरेपी, दैट इज कॉस्टली। बट उनका ब्रदर बोला था कि वी वांट टू डू समथिंग फॉर हर, वी कैन नॉट सी द सफरिंग, हम ये इतना पेन हम नहीं देख पाएंगे उनको। तो वो शुरू किया था, बट उनको क्लियरली बताया गया कि ये क्यूरेबल नहीं है आप कितना भी कच्चा करने से, लेकिन जस्ट कुछ महीना कुछ साल मिल सकते हैं। तो शी लिव्ड फॉर वो 2.5 years अच्छे से जिया था, बट देन शी डाइड ड्यू टू द कैंसर। बट उस 2.5 years में वो खुद लाइफ प्रायोरिटाइज किया है। जब फर्स्ट वीक में आया था वो टारगेटेड थेरेपी के बाद, शी केम इन व्हील चेयर। सेकेंड वीक में शी केम वॉकिंग। थर्ड वीक में शी वॉज गेनिंग वेट, तो अपना बेटी के साथ आया था। तब हमेशा ऑन्कोलॉजिस्ट और पेशेंट्स के जब भी डिस्कशन होता है, वी बिकम पार्ट ऑफ देयर फैमिली, लिटरली। मतलब उनका सुख दुख सब कुछ बताते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं अपना बेटे को स्कूल पे लेके जाना है,
और उनका जब भी फर्स्ट क्लास या जो भी होता है, आई वांट टू अटेंड दैट फंक्शन, एंड शी अटेंडेड। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि इतना कॉस्टली थेरेपी है, ये तो बीमारी ख़त्म नहीं हो रहे, तो क्यों देना है? आई एम नॉट जज, आई एम एडवोकेट, आई एम पेशेंट एडवोकेट। पेशेंट की तरफ से मैं एडवोकेट हूँ। मैं क्या क्या ऑप्शन है मैं बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है पेशेंट डिसाइड करेगा। आई एम नो वन टू जज कि पेशेंट को यही होना चाहिए, वो कोई भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई गवर्नमेंट हो, कि पेशेंट को इतना ही मिलना चाहिए, और ये पेशेंट का एकोनॉमिक स्थिति इतना है तो इतना ही करना चाहिए, नहीं। हाँ, जरूर डिस्कस करना चाहिए, इतना खर्चा होता है, इतना फायदा है, इतना नुकसान है, ये साइड इफेक्ट्स है। ये। सर, एक कैंसर पेशेंट के घर तो बर्बाद हो जाता ही है, उसका नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद हो जाता है, बहुत खर्चा आता है यहाँ पे। जब आप लोगों से मिलते हैं एक पेशेंट, तो पहले पूरा पेन लेके आते हैं, सब आप लोगों को बताते हैं, तो वो फीलिंग आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं? आप लोगों से कैसे कनेक्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट, कितना दुख उन लोग लेके आते हैं हम लोग से? ये दिस इज़ अ लर्निंग पॉइंट फॉर मेनी ऑफ अस, इन द सेंस क्या होता है, जब भी हम ट्रेनिंग पे जाते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट्स अलग है, पर्टिकुलरली मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग भी देखना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास इधर डायग्नोसिस आता है या स्टेज 4 में आता है। स्टेज 4 में यूजुअली सिम्टम्स के साथ आता है। व्हेन आई वाज इन राजीव गांधी न्यू दिल्ली, मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था व्हेन आई वाज अ कंसल्टेंट, मतलब अभी पीजी में भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट कंसल्टेंट में आप अकेला एक पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं। सो देयर वाज दिस जेंटलमैन जिनका उम्र लगभग 65 ईयर्स था, उनका वाइफ का डेथ हुआ था ड्यू टू हार्ट अटैक और समथिंग। उनका बेटा एक मेडिकल कॉलेज में था, बट ही हैड दिस, उस समय में फ्लू चल रहा था उस समय, एंड ही डाइड आफ्टर परस्यूइंग हिज थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस इन द मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ। उनका बड़ा बेटा का भी एक्सीडेंट हुआ था, और उनका अभी जो क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ जो बहू है और उनका चिल्ड्रन है, उनको यही देखभाल करना है, और भी इनको कैंसर हुआ है। एंड ही हैड दिस सार्कोमा करके एक कैंसर है जो लंग्स में ऑलरेडी फैला हुआ है। ये सब सुन के हम एक मूवी देख के हमको इतना दुख हो जाता है, जबकि रियल नहीं है। आप एक रियल आदमी आपके सामने बैठ के अपना कहानी बताते हैं। उस समय में माई वाइफ वॉज इन साउथ इंडिया फॉर डिलीवरी, तो मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन किसी से बात नहीं किया था, मतलब आई वॉज सो बैड मूड, अपने आप को कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, आई वुड से इट्स नॉट ईजी। आपका फर्स्ट कैंसर पेशेंट कौन था, आपको याद है सर, जिसका ऑपरेशन किया था आपने? जो मैं कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी करता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट कैंसर पेशेंट देखा था, वो व्हेन आई वाज अ रेसिडेंट इन ऑन्कोलॉजी, बट उसके पहले भी जो कैंसर पेशेंट को देखा था व्हेन आई वाज इन एमडी मेडिसिन, चेन्नई में? आंध्र प्रदेश में? एमडी मेडिसिन में भी तो हमारे पास से डायग्नोज होके ऑन्कोलॉजी में भेजते थे। तो दैट वाज ए ब्लड कैंसर पेशेंट। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। तो CML करके, यूजुअली जब पेट में गांठ हो रहा है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जब आने से, तो वो एक गांव से है। तो CML में तब तक जो होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड कैंसर देखने से ही, और आई वाज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट, मुझे इतना भी नहीं पता था कैंसर ट्रीटमेंट क्या है क्या नहीं है। तो मैं एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया था कि आपका नॉर्मल काउंट्स 10,000 होना चाहिए, 3 लाख है, तो ये तो ब्लड कैंसर है, एंड स्प्लीनोमेगाली भी, ये सब भी है, सो आप इसका लिए कैंसर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो पेशेंट मेरे पास वापस आया था 6 महीने के बाद, ऑलमोस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। आई वाज सो शॉक्ड। यूजुअली मेरा परसेप्शन उतना ही था एज ए फर्स्ट ईयर जनरल मेडिसिन PG इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कि यूजुअली ब्लड कैंसर है तो बहुत प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, एंड यूजुअली पेशेंट विल नॉट सर्वाइव, बट उसका ट्रीटमेंट जस्ट एक सिंगल टैबलेट है, ठीक हो गया। और वो 6 महीने में ऑलमोस्ट देयर इज नो कैंसर, लाइक इट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड, आई वुड से। सो इसका मतलब है कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते कोई भी चीज़, नॉट ओनली कैंसर को, एक एक बीमारी को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर पेशेंट है, 90s में आपको क्या लगता है कि स्टेज 4 लंग कैंसर कितना महीना जीता है?
1 साल? 6 महीने से 9 महीना। 6 महीने से 9 महीने। 9 महीना। अभी हमारे पास लंग कैंसर पेशेंट लगभग 10 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, बिकॉज हमारा छोटा सेटअप है, बट फिर भी 10 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो 3 साल से फॉलोअप में है, स्टेज 4। ओके। ये सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द रिसेंट एडवांसेस। एडवांसेस। सर अब ये बताइए सर, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा इंडिया से क्यों, नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों सर? क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे खाना में परेशानी है या जो एनवायरनमेंट या एक्चुअली स्पीकिंग कैंसर सब जगह ज़्यादा हुआ है। ये एक ओनली असम का या इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दुनिया में ही ज़्यादा है। इनफैक्ट यूएस यूरोप में देखा तो इससे भी ज़्यादा कैंसर्स है। बट विद इन इंडिया हम देखा तो इंडिया तो एक छोटा कंट्री जैसा नहीं है, ये इटसेल्फ इज एक कॉन्टिनेंट जैसा है। सबका फूड का कल्चर अलग है, पानी, ड्रिंक्स सबका अलग है, राइट? নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি শুনি আছে আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আৰু কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এই কেঞ্চাৰ। মই যিমান পাৰোঁ সিমান সূক্ষ্মভাৱে আৰু একেবাৰে খুটি নাটি মাৰি কথাখিনি সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেখেত যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু যথেষ্ট ব্যস্ত থকা এগৰাকী চিকিৎসক। सर मेरा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है सर। जी। पूरे इंडिया में असम ही क्यों कैंसर ने चुन लिया कि हम लोग असम में ही रहेंगे ज़्यादा टाइम? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखा तो कैंसर का इंसिडेंस पूरे इंडिया में अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। अर्बन में? अर्बन जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, उस एरियाज में कुछ कुछ कैंसर्स, पर्टिकुलरली जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड कैंसर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का आप देखा तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन, अभी हैदराबाद भी वो लिस्ट में ज्वाइन हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल प्रदेश, आइजवाल मिजोरम, उसके बाद कामरूप अर्बन। बट ये सब इंसिडेंट्स हमको पता चलता है यूजुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रजिस्ट्री, कैंसर रजिस्ट्री। वो दो तरह का होता है। एक है हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री। सपोज एक कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्री हमने शुरू किया, तो यहाँ से कहीं से भी आएगा पेशेंट तो उनका नाम एंट्री होगा, तो विल गेट टू नो कि इस साल में इस कैंसर इतना हुआ है और ये लोग यहाँ से आए हैं, तो एक क्यूमुलेटिव इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री। मतलब उस एरिया में किस तरह का कैंसर हो रहा है, कितना हो रहा है। ओके। बट असम में, असम जैसा बड़ा स्टेट के लिए भी ओनली 3 पॉपुलेशन रजिस्ट्रीज है। एक है कामरूप अर्बन, दूसरा सिलचर, थर्ड डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में? हाँ। तो ये 3 पॉपुलेशन रजिस्ट्री से ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आज मुझे आप पूछेंगे कि सोनितपुर में कितना है ब्रेस्ट कैंसर, मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके। तो जब भी ये कैंसर इंसिडेंस का बात होता है, हो सकता है कि बाकी जगह पे भी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हम जो भी इंसिडेंस बात करता है दैट इज फ्रॉम द पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री। एंट्री वहाँ पे हो रहा है ना? यस। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड सिलचर में हो रहा है। कचार कैंसर, कचार में हो रहा है। कचार में। तो उसमें उसके हिसाब से ही हम इंफॉर्मेशन बात करते हैं। जी जी जी। तो उस हिसाब से यस डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट माना जाता है इन इंडिया, बट अगेन वी डोंट नो व्हाई इट इज सो हाई। ओके ओके। वी डोंट नो, दैट इज द फ्रैंक आंसर। बट हो सकता है कि हम जो भी ले रहे हैं उसका डोज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अब अभी पूछेंगे डोज फैक्टर क्या है? हाँ, बता दीजिए। सपोज मैं खाना डेली मुझे 2500 किलो कैलोरीज चाहिए। हाँ। मैं 10,000 किलो कैलोरीज खा रहा हूँ, मुझे क्या होगा? ओवर खाना खा रहे हैं, ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी होगा। इन द सेम वे मैं एक्सरसाइज 1 घंटा करना चाहिए, 10 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहे हैं, शरीर थक जाएगा। जी। कोई भी चीज़ एक्सेस होने से उसका परिवर्तन होता है। सेम वे हम जो बिटलनेट खा रहे हैं, एक्चुअली दैट इज ए औषध। वो पूजा में जब भी खाता है, पूरा दुनिया इंडिया में खाता है ना, बिटलनेट ओनली असम में नहीं खाता है, सब खाता है, राइट? इनफैक्ट आंध्रा में, गुजरात में। बट बिटलनेट का डोज हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो शायद हम वो 10 ग्राम खाना है, हम 1 किलो का रहेगा, तो औषध तो विष बन गया ना, राइट। वो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा रेड मीट। रेड मीट, रेड मीट जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कार्ब भी
और मैं नागालैंड भी जाता हूँ, नागालैंड इस सब में रेक्टल कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। और स्मोक खाता है ना सब, हाँ, स्मोकी फ्लेवर बहुत Yes. खाता है। सो वो स्मोकी फूड्स पर्टिकुलरली रेड मीट, हाँ, वो प्रूवन फैक्टर है कि ये कैंसर करता है करके। पर्टिकुलरली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर नोन फैक्टर है। इसीलिए आप देखिए ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा कैंसर्स जीआई कैंसर्स होता है। ओके स्टमक से लेके लोअर इंटेस्टाइन, ये सब आंतों का बड़ा आंत का कैंसर, ये सब ओके, वो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं। यस, पर्टिकुलरली लोअर इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, जो पायखाना का रास्ता होता है, वो यूरो कैंसर, का। यस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का, वो रेड मीट से होता है। वो एक चीज़ है। ओके ओके। बट कोई और चीज़ को मैं लेबल करने के लिए कि ये कैंसर इससे होता है, बिकॉज लोग, आप नॉर्मल आदमी से पूछेगा यहाँ आयरन ज़्यादा है, यहाँ आर्सेनिक ज़्यादा है, ये सब बोलेगा, बट डू वी नो दैट यही से कैंसर हो रहा है? वी डोंट नो। इनफैक्ट आप ये भी देखा तो इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू, इज समथिंग कॉल्ड गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में। ओके, गोल। सो आप गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र का रिवर बैंक्स में जो भी एरियाज है, वहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो एम्स न्यू दिल्ली इसके ऊपर रिसर्च भी किया कि हम कोई ऐसा चीज़ है जो रिवर के बगल का एरियाज में, मिट्टी में या वाटर में ऐसा चीज़ है, या खाने में ऐसा है जिसके वजह से गॉल ब्लैडर हो रहा है कैंसर, बट उसके लिए भी एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन नहीं मिला आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो कोई भी फैक्टर को मैं लेबल करने के पहले सालों साल रिसर्च करना पड़ता है कि ये उसी से रिलेटेड है। मिलते थे। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये वहाँ रह रहे हैं इसलिए कैंसर हो रहा है, वो गलत है। मेरे को लगने से कुछ नहीं होता। रिसर्च कोई अभी तक फिक्स कोई पता नहीं। वो कई साल का रिसर्च, उसमें ऑब्वियसली रिसर्च का तो जरूरत है, जी जी। बिकॉज आपको पता है स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। हाँ, कैसे? सभी बता रहे हैं। वो प्रूवन फैक्टर है। हाँ। बट उसके लिए फर्स्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जो यूएसए में जो रिसर्च हुआ था, इट टुक सेवरल इयर्स। वो कैसे पता है आपको? एक रिसर्च हुआ था, वो लोग देखा गया है कि जो भी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का रजिस्ट्री होता है यूएस में, वो रजिस्ट्री में जो डॉक्टर्स मर रहे हैं उनका लिस्ट लिया था। जिसमें स्मोकिंग कर रहे हैं उनका लिस्ट लिया था। ओके। उसका एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है उससे कि ये सच में स्मोकिंग से ये रिलेटेड है या नहीं, उसको वो कैलकुलेट करके वो निकालने के लिए, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इन द एंटायर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कि कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है बोलने के लिए उतना रिसर्च, इतना टाइम लगा था 3-4 साइंटिस्ट को। ओके। और कई साल उनका टाइम लगा था। तब जाके यूएस अटॉर्नी, जो सर्जन जनरल है, वो डिक्लेयर किया कि स्मोकिंग से कैंसर। लंग कैंसर होता है। तब से हमको पता है, अदरवाइज उसके पहले एंटी कैंसर कैंपेन्स कौन करता है पता है? सिगरेट कंपनीज ही करता था। ओहो। तो एक फैक्टर को मैं अभी बोलूँगा कि यहाँ असम में इसके वजह से कैंसर हो रहा है, तो मैं गलत हूँ। स्पेसिफिक नहीं कर सकते, वो दैट शुड बी बेस्ड अपॉन रिसर्च। ओके। কিন্তু এটা কথা ছাৰে ক'লে যে যি বস্তুৱে নাখাওক এটা 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 মানে অভাৰ নাখাওক, যাতে এক্সাৰচাইজ কৰক, অভাৰ এক্সাৰচাইজ নকৰক, আপুনি খাদ্য খাইছে অভাৰ খাদ্য নাখাওক, তেনেকুৱা কিছুমান কথা ছাৰে কৈ আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই, স্পেচিফিক ক'ব নোৱাৰি যে এই কাৰণতে কেঞ্চাৰ হৈ আছে বা হৈ থাকিব। চ' কেঞ্চাৰে এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো বেমাৰে গোটেই পৃথিৱী ধ্বংস কৰি দিব, মানুহ মাৰি শেষ কৰি দিব। ইয়াৰ কোনো চিকিৎসা নোলাব নেকি কেতিয়াও? টেবলেটছ, एनीथिंग? कैंसर एक बीमारी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रिकग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो भी हम बोलते हैं वो एक बीमारी नहीं है, एक आम आदमी के लिए एक बीमारी है। सपोज एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट मेरे पास आएगा, सेम स्टेज, लेट अस से स्टेज 1, ओके, या स्टेज 2, 3 अलग अलग पेशेंट्स है, तीनों का प्रोग्नोसिस अलग होगा। तीनों को बायोप्सी हुआ है, तीनों को ब्रेस्ट कैंसर है, बट वहीं से वहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। आज का एडवांस, अभी ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई ट्रैवल टू सम पार्ट ऑफ द कंट्री टू लर्न न्यू थिंग्स और टू टीच समथिंग टू द माई जूनियर कोलीग्स, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर आम आदमी के लिए एक चीज़ है, वो ओपीडी में बैठ के, बाहर बैठ के हमारा तो ये ठीक हो गया था, आपका क्यों ठीक नहीं हुआ, ये भी बात करते हैं, बट सबका ट्रीटमेंट अलग है,
सबका प्रोग्नोसिस अलग है। सेम ट्रीटमेंट मैं 100 लोगों को दूंगा, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग आ सकता है उसमें। इसीलिए हम कैंसर टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं रिस्पॉन्स रेट्स, जो बाकी डिपार्टमेंट्स में यूज नहीं किया जाता है। सेम वुमेन, सेम स्टेज, सेम कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सेम तरह का कैंसर भी है जो मॉलिकुलर टाइप है, सेम ट्रीटमेंट दूंगा, 100 लोग रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। 100 में से 70-80% लोग, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 20% लोग रेस्पॉन्ड नहीं भी होगा स्टेज 4 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है हम पेशेंट को कम्युनिकेट करें सही से। मैं बोलूँगा कि आपका ट्रीटमेंट हो गया, खत्म हो गया, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गलत बोल रहा हूँ। यस, डेफिनेटली वी शुड गिव होप, वी शुड, बट वी शुड आल्सो टेल द ट्रुथ। ये इम्पॉर्टेंट है। কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে ন শেষো নহ'ব। কুৱেশ্যন কি সুধিম তাৰো কোনো স্পেচিফিক उत्तर আমি নাপাম। কিন্তু আমি सर अभी एक ही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे रुक सकते हैं इसको, कैसे थोड़ा कुछ तो होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं है, कुछ तो होगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना भयानक चीज़ नहीं है कैंसर जो हम 20 साल पहले सोचता था, ऐसा नहीं है। हाँ ये तो थी, ये इम्पॉर्टेंट है जानना। अभी ब्रेस्ट कैंसर का लगभग 50% लोग स्टेज 4 में भी लगभग 4-5 साल से ऊपर रहता है सर्जरी के बाद। स्टेज 4 में भी, स्टेज 4 में भी स्टेज 1, 2, 3 कई सारा पेशेंट्स क्योर हो जाता है। अप टू 70-80% ऑफ पेशेंट्स क्योर होता है। मैं ये बातें बहुत केयरफुली बोल रहा हूँ। स्टेज 1, 2, 3 नॉर्मली क्योरेबल स्टेजेस होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कई सारा पेशेंट्स क्योर हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स होगा जो क्योर नहीं भी होगा। ये पेशेंट को शायद नहीं भी पता चले, बट पेशेंट का फैमिली को पता होना इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी फॉलोअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट हम ऑन्कोलॉजी में 5 साल का लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल तक कितना लोग जिंदा होगा, 5 साल तक कितना लोगों को बीमारी वापस आ रहे, 5 साल तक किसका हालत ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत अच्छा है, वो सब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 साल हमारा एक लैंडमार्क है। जो भी 5 साल तक पहुंच रहे मतलब एक अचीवमेंट है। ओके सर, एজন पेशेंटर कैंसर হৈছে, तो फैमिली সকলোৱে जाने, उसका बेटा जानते हैं, उसका बहू जानते हैं, बेटी जानते हैं, वाइफ जानते ही होंगे। वो पेशेंट को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए जी इसका स्टेज 4 हो गया, उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों सर? बिकॉज यूजुअली पेशेंट का डर के मारे भी मर जाएगा ना। डर किस चीज़ का? कैंसर होगा, कैंसर हो रहा है। हाँ, वो तो सच है कि पेशेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल मौत का बात भी नहीं डरते हैं, बट कैंसर सुन के थोड़ा डर जाता है। बट हम कैसे बता रहे हैं वो भी मैटर करेगा। सपोज मैं बोलूँगा कि कोई किडनी डिसीज है, तो पेशेंट दर्द से मरेगा? नहीं मरेगा। बट कैंसर भी तो वैसा ही है। जिनका किडनी डिसीज है उनका लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चल रहा है। जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है वो तो पूरा डिपेंडेंट है डायलिसिस के ऊपर। किसी का लिवर डिसीज है, उससे डर से मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, ट्रीटमेंट होगा उसका। तो जिनका क्रोनिक लिवर डिसीज है, अनलेस लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, उनका भी तो ऐसा ही है। जिनका डायबिटीज है उनका तो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। मेडिसिन तो खाना ही पड़ेगा उनको। ऑब्वियसली कैंसर का कैसे डिफरेंट है? बिकॉज कैंसर जस्ट फिजिकल डिसीज नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। एक साइकोलॉजिकल डिसीज है, एक सोशल डिसीज है। ओके, द मोमेंट मैं बोलूँगा, सपोज हम बस में जा रहे हैं, मेरे बगल का कोई बैठा है, वो बोलेगा कि वो कैंसर पेशेंट है, ऑटोमेटिकली लोग ऐसा हो जाएगा। ये एक सोशल स्टिग्मा होता है। कई सारा हार्ट डिसीजेस में लाइफ स्पैन कंपेयर टू कैंसर कम होता है व्हेन हार्ट डिसीज इज सीवियर, बट लोग उससे डरते नहीं है। तो इसमें सोसाइटी का भी पार्ट है। जो वेस्ट में अभी अभी बहुत सारा रिफॉर्म्स है, देयर सपोर्ट ग्रुप्स। यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है कि कैंसर पेशेंट बोल के
उनको आने नहीं देते. फॉर एग्जांपल देयर वाज एन यंग लेडी हु यूज्ड टू कम. वो रेगुलरली नहीं आ रहा था. हम सोचा था कि क्यों नहीं आ रहे, पूछा था उनको, क्योंकि सर मैं बस में नहीं आ पाता हूँ. बस में आने से मेरे सीट में कोई बैठता नहीं है. बिकॉज शी लॉस्ट हेयर ड्यू टू कीमो. ओके ओके. ब्रेस्ट कैंसर है और स्टेज 4 नहीं है. शी इज टेकिंग कीमो. वो बोल रहा है कि वेजिटेबल वेंडर भी मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, वहाँ से देता है दूर से. तो तभी एक हमको सोच आया था कि बिकॉज ये चैलेंजेस सिटीज़ में अलग है. सिटीज़ में क्या है, लोग अंडरस्टैंडिंग, सब लोग अपना अपना ज़िंदगी से बिजी है. बट गांव में ऐसा स्थिति नहीं होता है. गांव में एक बात बहुत फैलता है, बहुत डिस्कशन होता है, स्टिग्मेटाइजेशन भी होता है. तो उसमें क्या हुआ, शी वॉज नॉट टेकिंग कीमो रेगुलरली, तो हम उसको एक विग देना शुरू किया था. एंड मैं बहुत लोगों से पूछा कि हम ऐसे विग्स देना चाहते हैं, कोई हेल्प करना चाहते हैं. सो देयर इज वन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड वी गॉट. तो लक्ष्मी गोस्वामी मैडम है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें फंड्स ट्रांसफर करके दे विल बाई विग्स एंड गिव इट टू अस. तो कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का कीमोथेरेपी शुरू होता है, हम विग पहले से दे देते हैं, ताकि आपका कहीं शादी में जाना है, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है. तो इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट ओनली दवाई से नहीं होता है. यस. इसके लिए कई सारा चीज़ें चाहिए होता है. उसका फैमिली का सपोर्ट फैमिली का सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर का सपोर्ट जी, चाहिए, जी, जी. सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए. जी जी तो सब लोग सोचना चाहिए कि हम उसके लिए हेल्प कर रहे हैं क्या. जी जी. और ऐसे ही हम लोग कैंसर को हरा सकते हैं. बिल्कुल, बिकॉज ये सिंगल आदमी से नहीं नहीं होगा. होगा सर. राइट. सो मुझे ये बताइए सर, स्टेज आप वो दिखा के भी हम लोग को समझा सकते हैं सर, स्टेज 1 में कैसे होता है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, स्टेज 4 क्या है, थोड़ा दिखा के अगर आप बता सकते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन ही कर ठीक है देता ठीक है हूँ. सर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल लेंगे. ओके, वो ब्रेस्ट में सीमित है, बहुत छोटा है. तो मैं बहुत ब्रॉडली बोल रहा हूँ, साइंटिफिक इस टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, एक आम आदमी को समझने के लिए. वहीं तक सीमित है, तब हम बोलते हैं कि लेट अस से स्टेज 1. ब्रेस्ट कैंसर से एक्सिला अगल बगल में लिम्फ नोड्स करके होता है, उसमें फैला तो तब वो स्टेज 2 होता है. ज़्यादा लिम्फ नोड्स में फैला तो स्टेज 3 होता है. ओके ओके. सपोज वहाँ से छाती में, लंग्स में आ गया, लिवर में आ गया, हड्डी में आ गया, तब स्टेज 4 हो जाता है. ओके. तो इसको मेटास्टेसिस बोलता है, मतलब दूसरे आर्गन में फैल गया, तब मेटास्टेसिस बोलते हैं, स्टेज 4 बोलते हैं. ओके. जो यूजुअली क्यूरेबल नहीं होता है. ओके. बट इसका मतलब है कि सब स्टेज 4 क्यूरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है. सपोज इफ इट इज अ ब्लड कैंसर, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लिम्फोमा. स्टेज 4 में भी वो क्यूर हो सकता है. ओके ओके. सर लेडीज को ज़्यादा कैंसर होता है या जेंट्स को होता है, ये ओवरऑल ओवरऑल पूछने से अभी वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड होता है. बट ओवरऑल देखा गया तो इंडिया में मेल्स में ज़्यादा होता है. मेल्स में ज़्यादा होता है, उसके बाद फीमेल्स में होता है. और मेल का सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है कैंसर? मेल्स कौन सी का organ सबसे में? ज़्यादा कैंसर है मुंह का कैंसर, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट का देखा गया तो. और उसके बाद इसोफेजल कैंसर और लंग कैंसर. लंग कैंसर. ओके. फीमेल्स में देखा गया तो सबसे ज़्यादा कैंसर है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर. उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी का मुखद्वार का कैंसर, एंड गॉल ब्लैडर कैंसर. ओके. एंड ऑफ कोर्स यूसोफेगस भी दोनों में ही कॉमन है, मेल फीमेल में भी यूसोफेगस. और यूसोफेगस जो खाने का नली का कैंसर है, इसका वन ऑफ द मेन रीज़न माना जाता है, जो हम ये बिटलनेट खाते हैं, उसके साथ बिटलनेट अकेला तो नहीं खाता है, उसके साथ खैनी, सुपारी, ये सब भी खाता है. दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द कॉमन रीज़न. वो पान खाते हैं ना. Yes. पान में जो. ओके. वो मुंह का कैंसर भी कहते हैं और खाने का नली का भी. ये ओनली नॉर्थ ईस्ट का, मतलब ओनली असम का नहीं है. आप देखा गया तो चाइना, ताइवान, वियतनाम, वहाँ भी ये आदत है. वो लोग भी खाते हैं. वो लोग भी खाते हैं, एंड वहाँ भी ये कैंसर्स बहुत ज़्यादा है. और छोटे बच्चे में भी अभी कैंसर आ रहे हैं सर, कितने एज से हो सकता है? कैंसर जब से हम जिंदा है, और जब तक हम मर जाएगा तब तक कहीं भी हो सकता है. बट रीजन्स अलग अलग हो सकता है. जो बचपन में होता है यूजुअली दे आर ब्लड कैंसर्स, एंड कुछ तरह का सार्कोमास, मतलब मांसपेशियों का कैंसर्स होता है, ये मोस्ट कॉमनली होता है. बट बच्चों का कैंसर्स मोस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल, बिकॉज इसमें इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स का यूजुअली रोल नहीं होता है.
मोस्ट ऑफ देम आर जेनेटिक कैंसर्स। जेनेटिक का मतलब ये नहीं है कि मदर फादर से आ रहे हैं, दे आर प्योरली ड्यू टू नॉन एनवायरमेंटल और नॉन पर्सनल फैक्टर्स। तो उन लोगों का जो ब्लड कैंसर्स होता है दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज अकरिंग इन एडल्ट्स। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी थोड़ा अलग होता है, क्यूर रेट्स भी अलग होता है। बच्चे लोगों को हम ज़्यादा कीमो दे पाते हैं, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन। ज़्यादा डोज दे पाते हैं, ज़्यादा क्यूर रेट्स होता है। ओके सर, गुटखा से कितना डेंजर है एक बार बता दीजिए सर। ये गुटखा कितना डेंजर है? मैं अपने ज़िंदगी से प्यार कर रहा है तो मैं गुटखा को नहीं कहूँगा। वेरी सिंपल, गुटखा बहुत डेंजर है, कोई भी टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये एक नॉर्मलाइज किया जाता है जब आप एक ऐसा सराउंडिंग में हो जहाँ गुटखा रेगुलरली खाते हैं, बिकॉज उसका असर आपको पता नहीं चलता है। बिकॉज सपोज लेटर से एक गांव में सब लोग गुटखा खाते हैं, फॉर एग्जांपल जिनका कैंसर हुआ है वो कभी कभी बाहर दिखते ही नहीं है, तो उसका असर बाकी लोगों के ऊपर नहीं होता है। उसका तो अपना ज़िंदगी में मतलब चुप चुप के जाता है, ट्रीटमेंट करता है। सपोज ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन हो जाता है। राइट। तो इसीलिए बट उसका फैमिली कैसे हुआ, कितना कच्चा हुआ, क्या हुआ, उसका असर जब सच में पास में से देखेगा तो कोई गुटखा नहीं खाएगा। राइट सर, अल्कोहल, गुटखा, खैनी, सिगरेट, इस हर नाम में बता दिया, सबसे अच्छा कौन सा है? मरने के लिए मरने के लिए और जिंदा रहने के लिए भी। तो अभी आप पूछेगा कि मैं चाकू से मरने से अच्छा है, दाव से मरने से अच्छा है, तलवार से मारने से अच्छा है, पिस्टल से मारने से अच्छा है? एक ही है, मरने एक ही है, मतलब मरना तो है, इंटेंसिटी अलग हो सकता है, मरना डैमेज अलग हो सकता है, आर्गन्स अलग हो सकते हैं। द रीजन इज, मैं बहुत डराना नहीं चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले हम ये सोचता था कि एक ग्लास अल्कोहल पीने से अच्छा है डेली, एक वाइन पीने से अच्छा है, ये एक कॉमन नोशन है पब्लिक में, हार्ट के लिए अच्छा है करके। हाँ, सब बताते रहते हैं। इस साल सेम जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर का बताया था, यूएस सर्जन जनरल ने बताया कि आप एक ग्लास नहीं, एक चम्मच भी अल्कोहल ले रहे तो ये आपके ऊपर असर दिखाएगा। ओके। जो लोग सोचते हैं कि मैं अल्कोहल लेके अच्छा फील हो रहा हूँ, एक फैशनाइज करते हैं आप, मतलब उसको एक हीरोइक एडवेंचर जैसा करते हैं कि आप स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना, विच इज़ रॉन्ग। जो हम 20s में करते हैं उसका असर आएगा 40s 50s में, जब आपका कंधों के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो बुरा असर सिर्फ आप ही नहीं, आपका फैमिली, चिल्ड्रन, सब लोग झेलना पड़ता है। सपोज 20s में मैं सिगरेट खा के इमीडिएटली कैंसर हो रहा है, तब तो आई थिंक नो बडी विल टेक दैट रिस्क, बिकॉज सब लोग तो चाहते हैं कि मैरिज करे, अच्छा ज़िंदगी जिए, अच्छा जॉब में चले, अच्छा ये करे, बट वो होता है बहुत साल के बाद। तो वो इमीडिएट जो भी नहीं होता है। हम कोविड से क्यों डरा है? इमीडिएट हो रहा था, इसीलिए डर रहे थे। आज इन्फेक्शन होगा, मैं 1 महीने के बाद जिंदा होऊंगा नहीं पता है, राइट। बट ये ऐसा नहीं है। ये तो धीरे इनफैक्ट जो कैंसर से जितना लोग मरते हैं ना हर साल, वो कोविड से कई गुना ज़्यादा है। क्या चैनल कवर कर रहे हैं? ठीक। कोविड में हर रोज हम देखता था, अरे इतना आज इतना लोग डेथ हो गया, इतना लोग कोविड पॉजिटिव हुआ, इतना लोग वेंटिलेटर पे है। कितना लोग देखते हैं कैंसर स्टैटिस्टिक्स? इसीलिए ये कैंसर स्टैटिस्टिक्स हम लोग दिखाना चाहते हैं। सर एक बार ये दिखा दीजिए मुझे, जो आपने इस यहाँ पे ऑन करके रखा था, और इस मॉनिटर में मैंने भी देख रहा था কিমান ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে। আমি ছাৰে ক'লে ইতিমধ্যে ক'ভিডৰ সময়ত আমি খুব চাই আছিলোঁ, আজি ক'ভিডত অমুক ঢুকাল, তমুক ঢুকাল, ইমান মানুহ মৰিল, কিন্তু প্ৰতি মিনিটত কেঞ্চাৰত কিমান মানুহ মৰি আছে সেই বিষয়ে এবাৰ চাই লওঁ আহক। ইয়াত ছাৰে সেই ষ্টেটিষ্টিক্সখিনি আমাক কৈ গৈছে। আপোনালোকে ভাবিলে, মই এইটো আপোনালোকক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে কোৱা নাই, জাষ্ট আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি ছেকেণ্ডত, প্ৰতিদিনে কিমান মানুহ কেঞ্চাৰত ভুগি আছে। ছাৰ প্লিজ। इसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट में मेल्स फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है और कैंसर होने का संभावना कितना है। जी। एज पर द रिसर्च, ये रिसर्च में ये देखा जाता है कि कितना कैंसर अभी हो रहे हैं, उसके हिसाब से एक एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में कितना हो सकता है, कितना रिस्क है। हाँ हाँ हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट में ही? नॉर्थ ईस्ट में। ओके। तो ये 2017 का डेटा है, तब से अभी तक
कैंसर का इंसिडेंस और भी ज़्यादा हुआ है, बढ़ रहा है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। ओके तो मेल्स में देखा गया है तो इसोफेगस खाने का नली का कैंसर सबसे ज़्यादा है 2017 में, उसके बाद लंग कैंसर, उसके बाद स्टमक स्टमक 9.2 9.2 एंड हाइपोफेरिंक्स एंड माउथ। हाइपोफाइलिंक्स मींस हाइपोफेरिंक्स मतलब खाने का नली, हमारा सांस का नली जो होता है ओके। उस एरिया है। ओके फीमेल्स में देखा गया है तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज्यादा 14.2 2% ऑफ ऑल द कैंसर्स। ऑल द कैंसर्स। सर्विक्स यूट्राई मतलब बच्चेदानी का मुखद्वार का कैंसर, इसोफेगस खाने का नली, लंग कैंसर एंड गॉल ब्लैडर कैंसर। एक गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत साउथ इंडिया में नहीं होता है, वेस्टर्न में नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। इनफैक्ट आपको ये सुन के थोड़ा हैरान होगा कि एंटायर वर्ल्ड में साउथ अमेरिका में छैल करके एक देश होता है, एक कंट्री है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है। क्यों सर? वही उसका स्पेशल रीजन नहीं स्पेशल पता रीजन है, नहीं पता। नहीं पता है। आपने बताया था ना कि नदी के किनारे जो में ये ऑब्जर्व किया गया, एक ऑब्जर्वेशन है, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। ओके बाप रे बाप। গ'ল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ আটাইতকৈ বেছি ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত दिल्ली सर, दिल्ली 14। ये देखा गया तो जैसे मैंने बोला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सबसे ज़्यादा दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम, मुंबई जैसे अर्बन एरिया से उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। और कामरूप अर्बन डिस्ट्रिक्ट में कामरूप अर्बन जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल है उसमें ज़्यादा है। उसके ऊपर हम नॉर्थ ईस्ट का देखा है तो पपुम पर है जो ईटानगर में है। मिजोरम आइजवाल এই ডিস্ট্রিক্ট है। বাপৰে এইখিনি ডাটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে নিজে গম পাব লাগে सर। मेल एंड फीमेल ये क्या है सर? ये प्रोबेबिलिटी है कि हम सपोज इस एरिया में कामरूप अर्बन का एरिया में 74 ईयर्स तक हम जिंदा है तो कितना कैंसर हो सकता है, कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रिस्क एवरेज रिस्क क्या है। तो बोलते हैं ना कि 100 में से इतना लोगों को कैंसर हो सकता है, वही कैंसर है, वही डेटा है। ये 5 लोगों में एक को कैंसर होने का रिस्क है बोल रहा था वो, विच इज़ क्वाइट हाई। मतलब मैं देख के मैं भी पहले सो सरप्राइज कि इतना हाई इंसिडेंस कैंसर हुआ था, बट दिस इज एज पर द एस्टिमेट। 5 জনৰ ভিতৰত এজনৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। वो परे अप टू व्हेन दे लिव अप टू 74 इयर्स। 74 इयर्स ओके। इन द सेम वे वही वो लोग बाकी जगह भी कैलकुलेट किया, जैसे पासीघाट है, मेघालय, कचर, सबका भी कैलकुलेट किया था। एक कामरूप का हम बात कर रहे थे जो जिसमें सबसे हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैंसर है। इन द सेम वे फीमेल्स सेम डेटा है ये भी। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर 83 आउट ऑफ 80 एवरी 83 फीमेल्स एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ डेथ नॉर्थ ईस्ट में देखा गया तो कैंसर से। तो ये डेटा है, ये रिस्क फैक्टर्स है, अलग अलग रिस्क फैक्टर जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके गया ये सब। ठीक है, थैंक यू सर सो मच सर। আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক সেইকাৰণে জনাব বিচাৰিলোঁ যে কেঞ্চাৰ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈনো আমি বাচি থাকিব, বাচি থকাৰ কোনো ৰিজনে নাই सर। ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है और आजकल बहुत लोग बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाते हैं। असम में अभी कैसा है? आप क्या देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? कारण आप बहुत टूर ट्रेवल कर ही रहे हैं इसके। मैं वही देख के हैरान होता हूँ कि इतना लोग ट्रैवल करते हैं दूर दूर जगह, एंड वो भी जर्नी आसान नहीं था। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और जब भी पेशेंट जाएगा उनके साथ 1-2 लोग भी जाएगा, उनका भी जॉब्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनका भी वहाँ रुकने का, खाने का, खाना भी अलग है वहाँ। हमारा फॉर एग्जांपल साउथ में देखा तो आंध्र तमिलनाडु में खाना अलग होता है जी, कर्नाटका में अलग होता है। तो वहाँ से जाके वहाँ रुकना, ये मैं CMC में एक बार ऐसे ही ट्रीटमेंट के लिए गया था। मेरा बच्चा आर्टिस्टिक है, आर्टिज्म मतलब एक डेवलपमेंटल का इश्यूज होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है चाइल्ड साइकियाट्री के लिए CMC वेल्लोर। तो वहाँ गए थे, वहाँ देखा कि कोई तमिल या तेलुगु पेशेंट है ही नहीं, सब नॉर्थ ईस्ट से, सब नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, यही से नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से। और जब भी लाइन में खड़ा हुआ बहुत लोगों से मैं इंटरेक्ट भी किया, क्यों इतना दूर ट्रैवल करते हैं, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम, बिलीव मी। मतलब फॉर एग्जांपल कैंसर कीमोथेरेपी साइकिल होता है 21 दिन में एक बार होता है, कई सारा साइकिल्स, कभी कभी हफ्ते में होता है। उतना टाइम कौन रुकेगा? एंड इनफैक्ट अभी तो कई सारा फैसिलिटीज असम में अवेलेबल है जी।
जिसमें मैं पहले काम किया था असम कैंसर केयर फाउंडेशन में। अभी कई जगह वो प्लेस में रेडिएशन अवेलेबल है। लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेनली गुवाहाटी डिब्रूगढ़ में है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी का एसेंशियलिटी ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे पूछेगा कि लिवर कैंसर का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, वो पहले जैसा नहीं है अभी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कमिंग, मतलब नया नया चीज़ आ रहा है। इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, और हर हफ्ते में हर महीने में नया नया चीज़ आता है। रिसर्च भी हो रहे हैं। रिसर्च भी हो रहा है, नया डेवलपमेंट्स होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दूसरा डिपार्टमेंट से ये सब फॉलो अप करूँ। इनफैक्ट अभी ऐसा भी हो रहा है कि हिमेटोलॉजी ब्लड कैंसर का विभाग धीरे धीरे सेपरेट हो रहा जी है जी जी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी से। हाँ हाँ। तो बिकॉज ब्लड कैंसर में इतना डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हिमेटोलॉजी में, मैं ब्लड कैंसर्स भी पूरा देखूंगा ये भी नहीं देखूंगा, पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज सपोज मैं पूरा सहयोग करना है पेशेंट को, जी मैं पूरा जस्टिफाई करना है, जी। तो आई नीड टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक कैंसर्स। राइट राइट राइट। इनफैक्ट आप टाटा मेमोरियल में जाओगे, वहाँ जो डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर देखता है वो ब्रेस्ट कैंसर ही देखता है जब तक वो टाटा मेमोरियल में है। राइट। उनको सपोज आप पूछेगा कि कोलन कैंसर में आंतों का कैंसर का ट्रीटमेंट वो अलग आप करो, वो नहीं करेगा करेगा। आपको। इतने दिन असम में कैंसर एक ही लोग देख रहे थे। वो अभी वो अभी डिपार्टमेंट जब भी डेवलपमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएटली हम उस तरह का आए। पूरा इंडिया में देखा गया तो आप ओनली टाटा मेमोरियल और एम्स में ऐसा चीज़ है। अलग अलग डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो पहले जब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं होता था तब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से कीमो दिया जाता था। बिकॉज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तब आप 20 साल पहले देखिए हार्डली पूरा इंडिया में कितना लोग होता था आप काउंट कर सकते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि वो लोग उतना बड़ा, बट अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का संख्या भी बढ़ रहा है। जी जी। तो वो बहुत स्पेसिफिक डिविजन्स हो गया कि आप डेवलपमेंट के हिसाब से भी बेस्ट एडवाइस पेशेंट को दे सके। दे सकते हैं। सर एक क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन ही है आपसे पूछने के लिए। आपसे अगर मैं केमो के बारे में नहीं पूछूं तो ये पॉडकास्ट थोड़ा कुछ क्या बताऊं उसको, जानकारी आधा रह जाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। सो केमो क्या होता है सर? और बहुत लोग बोलते हैं ना केमोथेरेपी ले रहा हूँ, इतना एक्सपेंसिव क्यों है केमो, और केमो कैसे दिया जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में सर, थोड़ा बता दीजिए सर। बिल्कुल। सो कीमोथेरेपी को लेकर भी बहुत सारा मिथ्स मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में। जी जी। पहले वाला कीमोथेरेपी अलग है। जब जो लोग आपको कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं कि कीमो में वॉमिटिंग होगा, कीमो में नुकसान हो जाएगा, अभी मैं बोलूँगा कि हम गाड़ी में जाने से गुवाहाटी में एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बिलीव करेंगे? वो तो नहीं है ना। नहीं नहीं। तब का रोड्स अलग है, तब का गाड़ी अलग है, तब का टेक्नोलॉजी अलग है। अभी आप देखा गया तो इतना 20 साल 30 साल में बहुत कुछ चेंजेस आया है। अभी आप जाते वक्त हमारे पेशेंट्स को किसी को देखिए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वो कैंसर पेशेंट है। वो लोग, कई लोग ऑफिस में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कई लोग अपना खेती भी करते हैं, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके हिसाब से रेजिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। मुझे गूगल करके ट्रीटमेंट नहीं करना होता है कि जो रिसर्च ओरिएंटेड ट्रीटमेंट जो होता है बेस्ट जो पेशेंट को सूट होगा उसके हिसाब से देना पड़ता है। तो अभी उल्टी के लिए ऐसा टैबलेट आया है कि जो सपोर्टिव मेडिकेशन बोलता है, तो 90% ऑफ पेशेंट्स को उल्टी ही नहीं होता है। और हेयर लॉस भी बहुत कम पेशेंट्स को होता है। पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में कुछ कुछ रेजिमेंट्स होता है, कुछ ब्लड कैंसर्स में रेजिमेंट्स होता है, जो पुराना रेजिमेंट्स अभी भी यूज करना पड़ता है, उसमें होता है हेयर लॉस। एंड देयर आर टेक्नोलॉजीज जो स्काल्प कूलिंग करके आता है, नया टेक्नोलॉजी है, वो लगाने से हेयर लॉस भी नहीं होता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। सेकंड, कीमो नहीं देने से जितना नुकसान होता है वो हम बताने से थोड़ा मुश्किल होगा। इन द सेंस, सपोज किसी को बीमारी है, हम कीमो नहीं दे रहे, उनका तो लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ हो जाएगा। आज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उस स्थिति में आता है जब बीमारी से भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा, बट परसेप्शन यही होता है कि कीमो लेने से ही दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप हम पेशेंट से इंटरव्यू भी करा सकते हैं कि
हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट जो कीमो लेके अपना काम कर रहे हैं और क्यूर हो गया, अपना नॉर्मल अपना लाइफ जी रहे। बट अच्छा चीज़ चप्पल पहनने के पहले बुरा चीज़ गाँव पूरा घूम के आ जाता है। यस यस है ना? तो ये चीज़ आप यूट्यूब में भी इतना सारा alternate practitioners. I have so much respect to Ayurvedic medicine, homeopathy medicine, यूनानी medicine, because सब चीज़ अपना अपना स्पेशल है। जी 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 उनका अपना अपना बीमारी का ठीक करने का ओन तरीका है, जी जी नेचुरोपैथी ये जी सब। जी बट हम कभी भी दूसरे चीज़ को वी शुड नॉट मतलब कम करके नहीं दिखाना चाहिए। इनफैक्ट हमारा कीमोथेरेपी का जो भी दवाई है वो सब कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, प्लान से आता है हाँ राइट? वो तो प्लांट हर्बल एक्सट्रैक्ट ही है, राइट राइट बट इन ए केमिकल फॉर्म। सर 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 एक्चुअली कीमो क्या है? वो टेबलेट है, इंजेक्शन है, एक्चुअली क्या है कीमो? इट्स लाइक कुछ इंजेक्शंस भी होता है, कुछ टैबलेट्स भी होता है। ओके तो कुछ कुछ इंजेक्शन फॉर्म में जो आता है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो फॉर एग्जांपल 5FU करके एक दवाई होता है, वो मैं इंजेक्शन फॉर्म में यूज किया तो पेशेंट 5 दिन लगातार एडमिट होकर इंजेक्शन लेना पड़ता है। मतलब 120 आवर्स उसका इंजेक्शन लगा होता है, चलता रहता है। सपोज वो टैबलेट फॉर्म में मैं यूज करता हूँ तो खाने से भी हो जाएगा वो 3 घंटे का इंजेक्शन देके मैं टैबलेट्स लिख के घर पे भेज देता हूँ। ओके तो इतना डेवलपमेंट्स भी आया है। हाँ तो कीमोथेरेपी हर बार नुकसानदायक नहीं होता है, वी नीड टू नो दैट। इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ केसेस आप सही आदमी से सलाह ले रहे और सही जगह से ले रहे और सही तरीके से वो दिया जा रहा है, तब आपको कीमोथेरेपी से नुकसान होने का चांस कम है। कम है ओके एक क्वेश्चन और सर नवजीत सिंह सिद्धू उसकी वाइफ का कैंसर हुआ था वो रिकवरी हो गया उसने आके प्रेस को बताया कि मैं हल्दी अश्वगंधा और ऐसे कुछ उनको पिलाया खाया उसके बाद इसका ठीक हो गया सर हमारा नेचुरल हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं कि ये खाने से थोड़ा नहीं होगा ये सब वो जो भी बताया था वो ऑलरेडी इंडियन फूड में सब में होता है। यस यस कोई ऐसा फूड है जिसमें टर्मरिक नहीं डालते हैं, हाँ सब में तो डालते हैं और कोई ऐसा चीज़ है जिसमें वो जो बताया था वो सब इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। बट नवजोत सिंह सिद्धू का ये है कि हम अगेन उस सडन सरप्राइज थिंग्स को लोग अट्रैक्ट होता है। उसी ट्वीट्स को वो ट्वीट में डाला था, उसी ट्वीट्स को थोड़ा पीछे जाके भी देखना चाहिए। सेम नवजोत सिंह सिद्धू का ट्विटर में अब देखा तो उसको कीमो चल रहा है, मुझे चल रहा है टारगेटेड थेरेपी चल रहा है, बेस्ट ऑफ द मेडिकेशन चल रहा है का। और वो खुद बोला था बात में कि हाँ हम सब कुछ किया है, उसके साथ ये किया है करके। लेकिन वायरल हो गया ये हाँ, तो वही चीज़ होता है कि हम जो ठीक भी होता है वो बोलना नहीं चाहता है कि ऐसा ऐसा चीज़ है करके। तो इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सपोर्टिव ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स में क्या होता है, सपोज किसी पेशेंट को बीमारी होके ट्रीटमेंट होके ख़त्म हो गया है, अभी अपना काम कर रहे हैं, ही विल बी पार्ट ऑफ सपोर्ट ग्रुप। अभी किसी को नया बीमारी डायग्नोज हुआ है, वो इसको गाइड करेगा जी जी कि नॉर्मली ऐसा होता है ट्रीटमेंट, ये बोलेगा डॉक्टर। जी तो ये सब चीज़ জি যিসকলে কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈছে তেওঁলোকৰো কিছু দায়িত্ব আছে সমাজলৈ যে তেওঁলোকেও সমাজলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰক যে কেঞ্চাৰৰ পৰা আমি কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ কেঞ্চাৰক কেনেকৈ আমি পৰাজয় কৰিব পাৰোঁ ছাৰে সেইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছে ছাৰ लास्ट क्वेश्चन हम लोग सभी को मेडिकल इंश्योरेंस करके रखना चाहिए सर ये तो थोड़ा बता दीजिए सर सबको नहीं तो 100% होना चाहिए। जितना लोगों के पास स्कूटी है, जितने लोगों के पास गाड़ी है, और कितने लोगों को उस स्कूटी या गाड़ी को इंश्योरेंस नहीं है। हो ही नहीं सकते ना, विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। पुलिस तो पकड़ ही लेगा एंड वो हमारा खुद सेफ्टी के लिए है ना, पुलिस पकड़ने के लिए भी तो क्यों पकड़ रहे? बिकॉज किसी को एक्सीडेंट होगा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, खुद का गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, तो वो होना जरूरी है। तो हम खुद का इंश्योरेंस क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली तो गाड़ी में कौन है? वो हम ही है हम ही ना। है ना तो हेल्थ इंश्योरेंस 100% जरूरी है। इनफैक्ट मैं कैंसर डॉक्टर हूँ, और इंडिया में जो जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ सब मेरा कोलीग्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स है। सपोज बाय एनी चांस कैंसर होता है तो वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट
ले सकते हैं, लेकिन दवाई के तो पे करना ही पड़ेगा ना। जो अभी टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी है, लाखों में है एक एक टारगेटेड थेरेपी, बिकॉज ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स होता है जो वेस्टर्न में रिसर्च होके आता है, एक ही कंपनी प्रोड्यूस करता है, तो उसको ऊपर 10 साल 15 साल पेटेंट होता है, कोई और कंपनी तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो कुछ इम्यूनोथेरेपी जो नॉर्मली यूज किया जाता है 2.5 lakhs पर डोज होता है, ये भी 3 वीक में देना पड़ता है, और कई बार वो 12 साइकिल 1 साल 2 साल चलता है। तो आप सोचिए कितना लोग एफर्ट कर पाएगा। इसीलिए इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए सबको। हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपना फैमिली के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस है, और कैंसर इंश्योरेंस अलग है। कैंसर इंश्योरेंस भी आजकल अलग से कर सकते अलग हैं। से कर Yes, सकता yes, है, yes. बट एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस में कैंसर कवर किया जाता है, मेकिंग इट ए क्रिटिकल इलनेस। लास्ट क्वेश्चन सर, आप एक कैंसर डॉक्टर हैं, कैंसर को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केमो दे रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप, हर दिन इतने कैंसर पेशेंट को आप देख रहे हैं, उनको सू रहे हैं, टाच कर रहे हैं सर, कभी आपको डर नहीं लगता? नहीं, इनफैक्ट मुझे उन लोगों से मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, पावर मिलता है। पावर मिलता है, इसलिए कि ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं। मुझे वो गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता हूँ, बट उन लोगों का जो ताकत है, मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैंसर सेल स्ट्रांग है, वो लोग स्ट्रांग है, डिसाइड करना मुश्किल होता है। सेकंड, इनफैक्ट मैं टच नहीं, हक भी करता हूँ। बहुत सारा पेशेंट जो आता है, ओल्ड पीपल पर्टिकुलरली जब आता है, दे आर मेरे पेरेंट्स से भी ऊपर का उम्र का होता है, दे आर सो फ्रेगाइल, थोड़ा डर से आता है। उन लोगों को उम्मीद देने में आपको जितना पावर भगवान दिया है कि आप इस स्थिति में बैठ के उन लोगों को हेल्प कर पा रहे, दैट इज ए पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई फील प्रिविलेज्ड टू बी एबल टू हेल्प देम, कि उन लोगों को एक उम्मीद दे पा रहे आप, उनका दर्द कम कर पा रहे, उनका सच बता पा रहे, उनका फैमिली का हिस्सा बन पा रहे। ये मौका कितना लोगों को मिलेगा? आप पॉलिटिशियन बन के नहीं बन सकते नहीं हैं, नहीं नहीं, कभी कोई सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय बन के नहीं बन सकता है, कोई और चीज़, कोई भी बहुत कम प्रोफेशंस में होता है कि आप जस्ट एक ही बार मिला है, उसका फैमिली का हिस्सा आप बन रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिविलेज है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए यस, उसमें बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, बट यस, एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम विथ सम अमाउंट ऑफ ड्यूटी। तो वो ड्यूटी भी निभाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, तभी आपको प्रिविलेज एंजॉय कर सकेगा आप। जी जी। तो या बट आप मुझे पूछेगा कि ये प्रोफेशन में आप बहुत लंबा टाइम तक रह पाएगा, मे बी नॉट, बिकॉज ये मानसिक हाँ स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप डेली लाइक एक अलग अलग मूवी देख रहे हैं, सपोज आप उसमें लीन हो जाता है, तो दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टोल, बट एट द सेम टाइम आप स्ट्रेंथ भी बन जाता है। मैं ये बात बहुत सीनियर से भी सुना है कि वो 5 साल में रिटायर हो जाएगा, 10 साल में सीनियर रिटायर हो जाएगा, बट अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप उससे स्ट्रेस ही हो रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं डेली में, डेली बेसिस पे, जी सर, जी सर, तो जिसमें आपको हेल्प करने का मौका मिल रहा है। जी सर, जी। लास्ट एक बात बता दीजिए सर, आप सुबह से रात तक खाता क्या है सर? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं सर? आपका आपका डाइट बता दीजिए, तो वहाँ से हम लोग सीख लेंगे। So see, like any other college student, college टाइम पे आई यूज टू लव बिरयानी अलॉट। मतलब हर फ्रेंड्स के साथ जब भी जाता है तो वी यूज टू और उस उम्र में क्या होता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर 20s and 30s, अब कुछ भी खाए कुछ भी करे, बॉडी सहन कर लेता है, बट व्हेन यू आर क्रॉसिंग 30s, एक तरह का बॉडी, हाँ, 30 के बाद 30s के बाद तो एक तरह का लिमिट आता है। सो 20s 30s में ये इंपॉर्टेंट है कि वी डोंट गो फॉर एनी हैबिट्स। आपको बहुत सारा मौका मिल जाता है ये करने के लिए, वो करने के लिए, बट यू शुड नॉट। रिगार्डिंग द फूड, अभी 30 के बाद तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई टेक लॉट ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद आता है, बट आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू कि कुछ दिनों में खाएंगा। जी जी जी। तो एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं डेली 10,000 स्टेप्स तक करने का कोशिश कर रहा हूँ, जी सर। और वाटर एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पीने per का day। कोशिश करता हूँ, ऐसा है। ओके।
थैंक यू सो मच सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सीखने को लिए मिला मेरे को और মোৰ যিসকল দৰ্শক তেওঁলোকেও হয়তো অকণমান অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কেঞ্চাৰ কি হয় আৰু মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকে অকল কেঞ্চাৰক লৈ পেলাই তেখেতে যুঁজি আছে কেঞ্চাৰ ৰোগীক চিকিৎসা কৰি আছে আৰু তেখেতক লগ পাবলৈ মই আহিলোঁ তেজপুৰলৈ सर आपको तेजपुर में ट्रीटमेंट करके कैसा लग रहा है ये स्पेशली इस हॉस्पिटल में इस कई बार मुझे ऑफर्स आता है कि आप गौहती में शिफ्ट हो जाओ हैदराबाद में शिफ्ट हो जाओ या बिकॉज एज यू गो ऑन मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ते ही अलग अलग ऑफर्स आता रहता है बट तेजपुर ऐसा जगह है कि जिसमें एक शांति है लेकिन यहाँ पे कैंसर भी बहुत ज़्यादा है सर कैंसर भी ज़्यादा है नॉट ओनली मतलब तेजपुर में अकेले नहीं मतलब जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से भी ये ड्रेनिंग एरिया है जैसे मैंने बोला था डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के बीच में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी नहीं है तो लोग आता है सलाह के लिए नहीं है तो दे नीड टू ट्रैवल ऑल द वे टू गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ तो जब लोग बहुत थैंकफुल होता है कि हाँ आप यहाँ मिल गया तो एक संतुष्ट होता है कि अब उनको यही जगह पे आप दे रहे हैं तो सेम वे आई गो टू नागालैंड वहाँ भी लोग बहुत थैंकफुल होता है कि वो लोग खुद 10 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं हम 5 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं बट दे आर वेरी हैप्पी तो तेजपुर हैज़ गिवन मी अ लॉट तो मैं भी वही हमेशा कोशिश करता है कि हम भी क्या कर सकता है तो या थैंक यू যিজন ডক্টৰক আপোনালোকে লগ পাবলৈ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত যাবলগীয়া হৈছিল তেখেতক তেজপুৰতে লগ পাব পাৰিব আৰু সেয়াই হৈছে এইগৰাকী মহান চিকিৎসক ধন্যবাদ ছাৰ থেংক ইউ এয়া আছিল এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক যাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে আৰু এইবাৰ মোৰ লগত দেৱজিৎ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেখেত হৈছে শংকৰা কেঞ্চাৰ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ তেখেত হৈছে পৰিচালন সঞ্চালক দেৱজিৎ নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ইমান ভাল কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ বাবে ইমানখিনি সুবিধা তেজপুৰতে কৰি দিছে ইমান জ্যেষ্ঠ এগৰাকী চিকিৎসকক আপোনালোকে তেজপুৰত ৰাখিছে তেওঁৰ পৰিচালনাত ইমানখিনি কাম হৈছে ৰোগীৰ খৰচ কমিছে ৰোগীয়ে ঘৰতে থাকি কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয় কেনেকৈ পৰিকল্পনাখিনি কৰিলে আচলতে ডক্টৰ ভেংকটৰ লগত মোৰ প্ৰথম চিনাকি হয় আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি তেজপুৰ ইনষ্টিটিউটত আমি দুইজনে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু কিছু অসুবিধা কি মই ইমান বেছিকৈ মই ক'ব নাযাওঁ তেখেতেও ফিল কৰিছিলে ময়ো ফিল কৰিছিলোঁ যে আচলতে যদি আমি আমাৰ নিজাকৈ এখন আমি খুলিব পাৰোঁ আৰু তেজপুৰ টাউনত বিশেষকৈ কাৰণ টুমুকি বহুত দূৰ হৈ যায় আমি দেখোঁ যে বহুত পেচেণ্টৰ অসুবিধা হয় টুমুকিলৈ অহা এখন যদি আমি খুলিব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো পেচেণ্টখিনি বহুত সুবিধা দিব পাৰিম সেই উদ্দেশ্যৰে মই এই দৰিকা হস্পিটেলৰ যি স্বত্বাধিকাৰী স্পন্দন হাজৰিকা তেখেতৰ লগত কথা বতৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰম্ভ কৰি পেলাই শেষত তেখেতেও ক'লে যে ঠিক আছে এটা আপোনালোকে ইউনিট হিচাপে আমাৰ এটা অনকলজি ইউনিট হিচাপে আপোনালোকে মই থাৰ্ড ফ্ল'ৰত এটা জেগা দিম গতিকে থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ ৩৫০০ স্কুৱাৰ ফিটৰ তেওঁ আমাক এটা জেগা দিলে শুনি আচৰিত লাগিব আমি একচুৱেলি মোটামুটি আপুনি এবাৰ মই চেণ্টাৰটো নিশ্চয় দেখিছেই গোটেইখিনিটোৱে এই গোটেই চেণ্টাৰটো এমাহৰ ভিতৰত আমি দিনটো ডিউটি কৰি ৰাতি ইয়াত আহি পেলাই কৰি এমাহৰ ভিতৰত এই চেণ্টাৰটো আমি নিজে বনাই লৈছিলোঁ গতিকে আমি প্ৰথমে মই সদায় ধন্যবাদ দিওঁ দৰিকা হস্পিটেলক কাৰণ তেখেতসকল নহ'লে আমাৰ হয়তো এইটো সপোনটো সপোনেই হৈ ৰ'ল হয় আৰু দ্বিতীয়তে আমি দৰিকা হস্পিটেলৰ লগত এইকাৰণে আমি জড়িত মানে হোৱাৰ খুব ইচ্ছাকৃত আছিলোঁ কাৰণ কেম'থেৰাপি যদিও আমাৰতো কমপ্লিটলি ডে কেয়াৰ ইউনিট বুলিয়ে কওঁ আমাৰ দিনৰ মানে দিনৰ ভাগত আমাৰ ৯টাটো 5টাই থাকে যদিও 5টা টাইম আমি কেতিয়াবা 7টা 7:30লৈকে থাকোঁ কাৰণ ইয়াত কেমো দিনত দিয়া হয় পেচেণ্ট ঘূৰি গুচি যায় সন্ধিয়া সময়ত কিন্তু কেতিয়াবা হয় কি পেচেণ্টৰ কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে য'ত হয়তো ICU দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা মেডিচিনৰ ডক্টৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে বহু সময় কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট দৰকাৰ হয় গতিকে সেই গোটেইখিনি সুবিধা দৰিকা হস্পিটেলত আছে আমাৰ পেচেণ্টক যদি এডমিট কৰিব লগা আমি তেখেতসকলৰ আণ্ডাৰত এডমিট কৰাওঁ তেখেতসকলৰ CT আছে গতিকে আমাৰ CTখিনি আমি ইয়াতে কৰাব পাৰোঁ প্লাছ লেবৰেটৰী টেষ্ট আদি চব আমি ইয়াতে কৰাওঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিহেতু এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট আৰু নিউৰ'লজিষ্ট আছে বাকীখিনিতো আছে এই দুজন আমাৰ খুব দৰকাৰ গতিকে সকলো সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কৰিলোঁ আৰু আমি নিজকে অনকলজি ইউনিট অফ দৰিকা হস্পিটেল বুলি কওঁ অ'কে দৰিকা হস্পিটেল তেজপুৰ এখন বিশেষ হস্পিটেল আৰু সেই হস্পিটেলখনৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰতে আছে এওঁলোকৰ এই ইনষ্টিটিউট আৰু য'ত কেম'থেৰাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেঞ্চাৰৰ সকলোবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত কৰা হয়
কিমান ৰোগী আহে প্ৰতিদিনে দেখি আছো মই অহাৰ পৰা আজি অকমান বাৰু আমাৰ আচলতে যেতিয়া আমি ইয়াত প্ৰথমতে PMJYও আমাৰ দৰিকাৰ অধীনত আছিলে তেতিয়াতো আমাৰ পেচেণ্ট মানে অত্যাধিক বেছি আছিলে কাৰণ কেঞ্চাৰ হৈছে এটা বিৰাট ব্যয়বহুল বেমাৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে ধনী মানুহৰ বেমাৰ বুলি ক'লেও মই তাকে মানে ক'ব বেয়া গৈছিলো ধনী মানুহৰ আৰবানত হয় ন হয় গতিকে খৰচা বহুত বেছি গতিকে PMJY কাৰ্ড থাকোঁতে আমাৰতো বহুতেই বেছি আছিলে কিন্তু তথাপিও ইভেন PMJY নোহোৱাকেও মই যদি এভাৰেজ হিচাপে চাওঁ মই এনেই ক'লোঁ যোৱা এক বছৰ এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে মাৰ্চ 25লৈকে আমি প্ৰায় 900-800 পেচেণ্ট আমি নতুন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তো সেই হিচাপে বুজা যায় যে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে 800 পেচেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰা কোনো কেইমাহত এবছৰত 800 পেচেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সৰু নতুন বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু হয় সৰু চেণ্টাৰ কিন্তু আৰু মেইনলি আমি ৰিলেটেড আমিতো মানে গুৱাহাটীৰ নিচিনা মহানগৰীত নহয় তেজপুৰৰ নিচিনা এখন সৰু জেগা হয়তো খুব বেছি গহপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এফালে এইখিনি এৰিয়াৰ মানুহখিনি ইটানগৰ এইটো আমাৰ ইয়ালৈ অহাই নাই আহিবলৈ হ'লেতো বহুত বেছিয়ে হ'ব গতিকে 800 আমি গোটেই বছৰটোত কৰিছোঁ গতিকে এভাৰেজ আমাৰ দেখোঁ 10জন 15জনটো আমাৰ থাকেই আনকি কেমো 6-7টা 8টা এটা সময়তো 20টালৈকে কেমো আমি দিছিলোঁ দিনত পাৰ ডে দেৱজদা এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্মৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি মানুহক সহায় কৰা নে ধন ঘটা ডাইৰেক্ট সুধিছো আৰু নাই কাৰণ কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে ধনী মানুহৰ বেমাৰটো পইচাও আছে ইয়াত একদম তুমি যি সুধিছা তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ দেই তোমাক মই একদম সঁচা কথাই সুধিছা কাৰণ জেনেৰেলি আজিকালি আমি যদি অসমত চাওঁ বহু ব্যক্তিগত হস্পিটেল খুলি আছে অকল ধন ঘটিবলৈ বহুত খোলা হয় কিন্তু আমাৰ এই যিটো আমি চেণ্টাৰটো খুলিছোঁ আমি ধন ঘটাৰ কাৰণে খোলা নাই কাৰণ ধন ঘটিবলৈ খুলিবলৈ হ'লে মই যদি ইয়াত মই যিমানখিনি মই পইচা পাওঁ বা যিটো মোৰ আজি যেনেকৈ চলি আছোঁ তাতকৈ মই টাটাত থাকিলে তাতকৈ বেছি পইচা পাই আছিলোঁ টাটাত আপুনি বহুত বছৰ আছে নহয় একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে 3 বছৰ থাকিলে 3 বছৰ মই তাতে পইচা পাই আছিলোঁ ডক্টৰ ভেংকটৰ কথা যদি কওঁ মই মোৰ চকুৰ আগত মই নিজেই তেওঁৰ লগত একেলগে গাড়ীত অহা যোৱা কৰোঁ মই শুনা পাওঁ তেওঁক অফাৰ আহে যে আপুনি যিমান পাইছে 3 গুণ দিম আমাৰ ইয়াত আহক তেওঁ আৰামছে যদি হায়দৰাবাদ দিল্লী চেন্নাই যিকোনো এটা জেগাত যদি বহে তেওঁ আজি যিটো মাহত কমায় সেইটোতো দিনত কমাব আৰু ডক্টৰ ভেংকটৰ লগত মোৰ যিটো পৰিচয় মানে মই তেওঁক ভাল পোৱাৰ এটাই কাৰণ মই তেওঁৰ লগত খুব ক্ল'জলি জড়িত যিকেইদিন কাম কৰিছোঁ মই এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিছোঁ যে মানুহৰ হাতত বোলে পইচা নাই কিনিবলৈ মোৰ তেওঁ টাটাত থাকোঁতেও তেওঁ নিজৰ পকেটৰ পৰা পাৰ্চৰ পৰা পইচাও দি দিয়ে যে আপুনি দৰৱ কিনি ল'ব তেওঁ মানুহক মই এনেকুৱাও ঘটনা পাইছোঁ মানে মাকৰ লগত থাকিবলৈ কয় যে তোমাৰ মাৰ শেষ ষ্টেজ কিন্তু হোটেলত কাম কৰে ডেইলি হাজিৰা তেওঁ 5 দিনৰ হাজিৰা দি কৈছিলে হাজিৰা মই দিছোঁ তুমি ঘৰত থাকা তেনে এজন মানুহে পইচাৰ কাৰণে কিয় হেৰি কৰিব আৰু এতিয়াও আমি ইয়াত যিটো খুলিলোঁ এতিয়াও আমাৰ ওচৰলৈ বহু দুখীয়া ৰোগী আহি কয় যে মানে মই মোৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ কোনোবাই কয় মোৰ কাণফুলি বিক্ৰী কৰি পেলাই মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টটো তেনেকেই কৰি আছে সেইটোৱেতো দুখৰ কথা আৰু যেতিয়া সেইখিনি কয় তেতিয়া ডক্টৰ ভেংকটে বেলেগ এজনে হয়তো ক'লেহেঁতেন যে সেইটোতো নাজানো ভাই দৰৱটো পইচাটো মোক দিবই লাগিব কিন্তু এজন মানুহ কাৰণ সৌভাগ্যক্ৰমে ফাৰ্মাচীখনো আমাৰ নিজৰে গতিকে তেওঁ ইহঁতক কয় ইহঁতে সোধে ছাৰ কিমান পইচা ৰাখিম 1 পইচা বি মাত্ৰ ৰাখোঁ 0 কৰোঁ সিহঁতে কেতিয়াবা আহি পেলাই মোৰ ষ্টাফৰ যিখিনি মানুহ আছে মোক আহি কয় ছাৰে দেখোন চব ফ্ৰীকেই দিয়ে মই ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণেই আমিতো আছোঁ যিমানখিনি আমাৰ সহায় আমি কৰোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে চোৱা আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট কেতিয়াবা হয় কি দূৰৰ পৰা কোনোবা এজন যদি মানুহ আহে ওদালগুৰিৰ পৰা এজন মানুহ আহিলে বা গহপুৰৰ পৰা আহিলে বিহপুৰীয়াৰ পৰা আহিলে তেওঁ ৰাতিপুৱা আহি কেঞ্চাৰৰ কেম'থেৰাপি ল'লে সন্ধিয়া আকৌ ঘূৰি যাবলৈ হয়তো অসুবিধা হয় আৰু যিমান যি নহওক যদিও তেখেতে ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে কেমো ল'লে খুব এটা বিশেষ হেৰি নেদেখায় কিন্তু তথাপিওতো এটা ঘূৰি যোৱা অহা যোৱাটো এটা অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে আমি আশাদ্বীপ নামৰ এটা NGOৰ লগত আমি কথাটো জানাই আছেগৈ তেখেতসকলে আমাক সুবিধা কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ এটা গেষ্ট হাউচ আছে এজন পেচেণ্টৰ লগত এজন এটেণ্ডেণ্ট থকা খোৱা সকলো বিনামূলীয়াকৈ আমি কৰি দিওঁ গতিকে আমি সেই ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ যাতে মানুহে যাতে আহি পেলাই কষ্ট পাব নালাগে তাত যাতে কোনো পইচা নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কোনো পইচা নলওঁ তাৰ উপৰি আমি এতিয়া উইগৰ কাৰণে বহুত কেঞ্চাৰ হ'লে কেম'থেৰাপি ল'লে কৈছে ছাৰ অলৰেডি কৈছে তাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰী উইগ দিওঁ
মাজতে যেতিয়া পেচেণ্ট বহুত আছিলে খোৱা বোৱা মানে ৰাতিপুৱা আহি আবেলিলৈকে বহিব লাগে এনেকুৱা পেচেণ্টে যোনে একাপ চাহ খাবলৈ মানে নাপায় আমি তেখেতসকলক ফ্ৰী খিচিৰি খুৱাওঁ তো কেনেধৰণে এজন পেচেণ্টক আমি মানে অসুবিধা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কেমো ল'ব পাৰে সেইটো আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ কিনো কম দেৱজিৎ দাক এইখিনি এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ হেতু এটা মোৰ উদ্দেশ্য অকণমান সজাগ সচেতন কৰা ৰাইজক আৰু দুখীয়া ৰাইজে যোনে গৰুহাল বিক্ৰী কৰি কেমো লৈছে যি মাটিডৰা বিক্ৰী কৰি কেমো ল'বলগীয়া হৈছে সেইসকল পেচেণ্টৰ বাবে এই বিশেষ ব্যক্তি দুজন আছে আৰু সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিলোঁ আয়ুষ্মান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ হয় নে নহয় ইয়াত আজিকালি তাৰ ওপৰত হয় এই বিষয়ে মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে প্ৰথমতে যিটো মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ যেতিয়া আয়ুষ্মান চলিছিল আমি মাত্ৰ 2 মাহ নে 3 মাহে আমি আয়ুষ্মানৰ আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ সেই সময়তে বহুত পেচেণ্টক আমি ট্ৰিট কৰিছিলোঁ মানে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল যে আমিতো মই যেতিয়া খুলিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ডেইলি কেইটা মানুহ আহিব 10টা আমি বহাৰ ব্যৱস্থাও সেইমতে চকী লৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মানে PMJY হ'ল ইমানেই পেচেণ্ট হ'ল এক্সট্ৰাকৈ চকী প্লাষ্টিক চকী কিনি আমি লগাব লগা হৈছিলে আজিও হয় কেতিয়াবা কিন্তু ঘপককৈ এই PMJY বন্ধ হৈ গ'ল এই মই তোমালোকৰ চেনেলটো যিহেতু ৰিচ আছে মই কোনো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিবা কিবি কৰিছে এইটো সদায় তেওঁক মানিব লাগিব কাৰণ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি উন্নতি হৈছে তেওঁৰ অধীনত এইটো হয়তো অসমে বহু বছৰ দেখা নাছিলে কিন্তু মই আজি মোৰ ফালৰ পৰা নহয় এজন হস্পিটেলখনৰ পৰা নহয় মোৰ হেৰি নহয় মই আমাৰ ওচৰলৈ অহা বহুখিনি মানুহ আমাক আহি পেলাই কয় যে আপোনালোকে আয়ুষ্মানটো কিয় নিদিয়ে এতিয়া ডক্টৰ ভেংকটে আয়ুষ্মানত পাব নলগা পেচেণ্টক তেওঁ যিমান পাৰে আমি ফ্ৰী কৰি দিছোঁ কিন্তু সদায়তো আমি ফ্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা এনে পেচেণ্ট দেখোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰে আমি ভাগি পৰোঁ যে আমি একো সহায় কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কৰিব পৰা অৱস্থা নাই যদি এক হাতেৰে আমাৰ যদি আমি ধেৰ পইচা কমালোহেঁতেন তেতিয়া হয়তো দিব পাৰিলোঁ কিন্তু আমি এনেই কম দামত দিওঁ মানে আয়ুষ্মান বন্ধ নেকি কমপ্লিটলি বন্ধ অসমত বন্ধ অসমৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি থৈছে গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ থ্ৰুদি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মই জনামতে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাইভেট চবতে চলি আছে মাত্ৰ অসমত বন্ধ হৈ আছে এইটো বহু এবছৰে হ'ব হ'ল প্ৰায় এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো বন্ধ কৰি দিছে প্ৰাইভেট গম পালোঁ কিছু চিকিৎসাৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু মেজৰিটি চিকিৎসা সকলো বন্ধ কৰি থৈছে আৰু কেঞ্চাৰৰটো নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় গতিকে ইয়াৰ থ্ৰুদি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই এটা সৰু আহ্বান মানে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট ক'ব পৰা বা আমাৰ তৰফৰ পৰা বুলি নহয় পেচেণ্টসকলৰ তৰফৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অন্ততঃ যিকেইটা কেঞ্চাৰ খুব বেছি দেখা গৈছে যি ডক্টৰ ছাৰে অলৰেডি ক'লেই যে কি কেঞ্চাৰ আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ হয় তাৰ যিখিনি কেম'থেৰাপি সেইখিনি যদি তেওঁ আকৌ এবাৰ মানে অনুমোদন দিয়ে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেল এখনত কৰিব পাৰে তেতিয়া হয়তো বহু পেচেণ্টৰ বহুত সুবিধা হ'ব সেইখন মই তেওঁক সদায় ক'ব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ দেৱজিৎ আৰু এষাৰ কথা মানে জাষ্ট ক'ব বিচাৰোঁ মই মোৰ যিহেতু ইয়াত মানুহ আহিলে মোক লগ ধৰে বহু মানুহ আহি পেলাই মানে কি কয় তেওঁ চেন্নাইত গৈছিলে চেন্নাইৰ পৰাই ডক্টৰে কয় যে তেজপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ কিয় আহিছা হেৰিলৈ যোৱা তেজপুৰত গৈ পেলাই কৰা আমি বহুতো এপলৰ হওক হেৰি হওক তেখেতসকলৰ পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে প্ৰথম চিকিৎসাটো তেওঁলোকে কৰে পৰৱৰ্তী যিটো চেকআপো ইয়াত কৰিছোঁ কেমো আমি ইয়াত কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা মই জাষ্ট সকলোকে জনাব বিচাৰোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ যদি এটা বেমাৰ হৈছে আপুনি যাওক বাহিৰলৈ কিন্তু যোৱাৰ আগতে বা যোৱাৰ পিছত যদি পাৰে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে যোৱাৰ আগতে এবাৰ ইয়াতো সোমাই যাওক কাৰণ কেলৈ যিকোনো ধৰণৰ টেষ্ট যিকোনো ধৰণৰ বায়'পচি যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ যদি জেনেটিক টেষ্টিং সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ আছে তাৰোপৰি তেখেতৰ আমাৰ হস্পিটেলবিলাকৰ লগত চবৰ লগত কথা পতা আছে যি ভাল অনকলজিষ্ট সকলোৰ লগত আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং এই ৰুমটো এই ব্যৱস্থাটো এইকাৰণে আমি কৰিছোঁ যাতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি এটা ছেকেণ্ড অপিনিয়ন বা ফাৰ্ষ্ট অপিনিয়ন আমি তেওঁলোকক লগাই দিব পাৰোঁ দুজন মানুহ চেন্নাইলৈ যাওঁতে যিমান খৰচা হ'ব তাৰ 10 ভাগৰ এভাগ খৰচাত আমি এটা অনলাইন কনচালটেশ্যনো কৰাব পাৰোঁ টেষ্ট যিখিনি চেন্নাইত কৰিব সেই টেষ্টখিনি আমিও কৰাই দিব পাৰোঁ ইয়াত গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই পইচাৰ কাৰণে আমি এইটো কৰা নাই মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে খুলিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য যাতে কেঞ্চাৰৰ যিটো যুঁজ হৈছে সেই কেঞ্চাৰৰ যুঁজটোত যাতে আমি জিকিব পাৰোঁ অসমক যি কেঞ্চাৰ কেপিটেল কোৱা হৈছে সেইটো যাতে আমি বদনামটো আঁতৰাব পাৰোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো এখন খোলা হৈছে দ্বিতীয়তে চেনেলত চাই থকা সকলোলৈ মোৰ এটা সৰু আহ্বান আমি হয় কি
মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে মই কৰিম, মোৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহটো কেঞ্চাৰ হৈছে জানিও মই নকওঁ, বৰঞ্চ মই তেওঁৰ ঘৰলৈও নাযাওঁ, নুসুধো, বাদ দে মৰিলে মৰিব যি হওক, ভাবোঁ আমি তেনেধৰণৰ। মই সঁচা কথাটো কৈছোঁ, এতিয়া শুনিবলৈ বেয়া। সেইটো নকৰি যদি মই বুজি পাওঁ, আজি এখেতে কোৱা কথাখিনি যদি 10জন মানুহে বুজি পাইছে, সেই 10জন মানুহে ওচৰৰ 10জন মানুহক যদি কয় যে ভাই তোমাৰ এই লক্ষণখিনি মই ভাল দেখা নাই, বেছি নালাগে এবাৰ তুমি ডক্টৰক দেখাই লোৱাচোন, তেওঁ বেয়াও পাব নালাগে, যাক কয় তেওঁ বেয়াও পাব নালাগে। সেইটো হ'ব লাগিব, কাৰণ আগতে আছিলে কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে মৰিবই, কেঞ্চাৰ ভয়ংকৰ বেমাৰ, সেইটো গ'ল। আজি সেইটো নহয়, কিন্তু আজি কেঞ্চাৰ যিটো ৰূপত বাঢ়ি গৈছে, কাইলৈ কেঞ্চাৰ হোৱা আৰু চৰ্দি জ্বৰ হোৱা একেই হ'বগৈ যদি আমি কিবা এটা নকৰোঁ, একেই হ'ব। আৰু কেঞ্চাৰ হ'লে মানুহ মৰি যাব, অমুক হ'ব, এইবিলাক মিছা কথা। কেঞ্চাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত যদি আমি ধৰা পেলাই দিব পাৰোঁ, সি সহজে ভাল হৈ যায়। গতিকে মানুহ হিচাপে সমাজখনত আমাৰো এটা কৰ্তব্য থাকে যে আমি যদি ওচৰে পাঁজৰেও কাৰোবাক দেখা পাওঁ, নিজৰ ঘৰখনত কাৰোবাক দেখা পাওঁ, অৱহেলা নকৰি লগে লগে যাতে আমি এটা ট্ৰিটমেণ্টত আহিব পাৰোঁ। এইখিনি কথা যদি আজিৰ এই তোমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যদি এই সৰু সৰু কথা কিছু মানুহখিনিয়ে ইয়াৰ অলপো বুজি পায়, মই ভাবোঁ আমাৰ এই পডকাষ্টটো, আমি এই যিটো শংকৰা কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট খোলাৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে, ই সফল হৈছে। ধন্যবাদ। আৰু তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ যে তুমি আহিলা তেজপুৰলৈকে আহি আমাৰ এইটো পডকাষ্টটো কৰিলা, তাৰ বাবে শংকৰা কেঞ্চাৰৰ পৰা সকলোৰে পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শেষ কৰিছোঁ মই গোটেই অনুষ্ঠান ডক্টৰৰ লগত আৰু দেৱজিতৰ লগত কথা পাতি এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে শেষত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল এবাৰ ৰিপিটেই কৰি দিছোঁ, যিসকলে গৰুহাল বিক্ৰী কৰি পেলাই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, যিসকলে মাটিডৰা বিক্ৰী কৰি পেলাই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, যিসকলে সেই পইচাকেইটা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে, বাহিৰলৈ যোৱাৰ আগতে তেজপুৰৰ দৰিকাৰ হস্পিটেলৰ 3rd ফ্ল'ৰত থকা শংকৰা কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত সোমাই এবাৰ খবৰ এটা কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ বাহিৰলৈ গ'লে যিমান খৰচ হ'ব তাৰ বহু কম খৰচত আপোনালোকে ইয়াতে কিছু আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। বহুতক সহায়ো তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু কি ক'ম, বিশেষ ক'বলৈ এইটোৱে নাই, কাৰণ ছাৰে এটা কথা ক'লে, যোন প্ৰথম জন্ম হৈছে ন, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আৰম্ভ কৰি দিছে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিবৰ কাৰণে। কিন্তু এই কথাটো মোৰ তেখেতৰ খুব বেছি ভাল লাগিল। গতিকে মৃত্যুটো সকলোৰে আহিবই, পিছে কেঞ্চাৰো আমাৰ মাজত যথেষ্ট শিপাইছে। কেঞ্চাৰক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব, কেঞ্চাৰক আমি জিকিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি এলকহল, গুটখা, মদ এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। লগতে আমি খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আমি কি খাই আছোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। এই সকলোবিলাক আলোচনাৰ পৰা এইখিনি কথা মই অনুভৱ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আজি যথেষ্ট শিকিব পাৰিলোঁ আৰু কথাখিনি মই আপোনালোকক বুজাবলৈও চেষ্টা কৰিব পাৰিলোঁ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। এই পডকাষ্টটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দেৱজিতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তলত নম্বৰ দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, লোকেশ্যনো থাকিব, সকলোবিলাক থাকিব। আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰোঁ। ধন্যবাদ।